Good evening, friends. A warm welcome who is for sparing time to be with us. Before that, Vipin, okay, fine. If you're not able to hear me for some reason, Vipin, kindly put me on the WhatsApp, send me a message. I'll be watching that. So once again, welcome. We are extremely sorry that because of some technical problems yesterday, we could not follow through. Both of us have put in a lot of efforts for doing this program. As much efforts we have put, hopefully that will result into some good delivery, which means you all will be benefited. So my name is Vijay, and my host for this session is Vipin. Between both of us, we have nearly 60 man-years of experience in the markets. So our way of thinking will certainly be very, very different from what you must be listening day in and day out. So when you will know this as we go along. So why are we doing this space now? We are doing this space because we believe now we are in a very crucial time to examine where are we. The reasoning being that you see both of us have been collaborating for the last 18 months. We were both bearish in August, September of 2021 and continued our bearishness somewhere till May 2022 when people were still bullish. When I say people, I would say the big guys who come on TV, the strategists, the fin influencers, and furus and gurus and whatnot. Now, since May 2022, we both turned bullish. Of course, the Nifty bottomed out in June. The Bank Nifty bottomed out in March. And then we have been continuously bullish till around June, July of this year. And we became cautious somewhere in June, July. And if I speak for myself, I have, jumped down to the bear camp. Obviously, Vipin is ahead of me all the time, whether in bullishness or bearishness. And he has his own views. Most of the time it coincides. I'm sure he will be able to give you his ideas as we go along the program. So we want to make this as a program for about 2 and odd hours. So around 9:30, we would like to shut down, hard shut down. So for the first 25 minutes, I will speak, then Vipin will speak, and then we throw open the floor for question answers or discussions. Abhishek is here with us as a co-host, and is gladly agreed to help us out in getting people onto the board to ask questions. Thank you, Abhishek, once again. Yesterday also you were there, and today also you are here. My pleasure, sir. My pleasure. Yeah, we are very grateful for your assistance, because you are a very crucial person here, because we'll be speaking, you will know exactly what to do. So therefore, why is this topic? Ye kahan gaye, aa gaye hum, or where are we? Because we need to know where we are, and only then can we know where we will go. Not where we want to go, but which is the way forward. Because what happens is, many a time we don't know where we are, and we think we should go in a certain direction, but the direction, actually the doors will be closed, but we'll be banging on the doors. Today, for instance, we feel that the bullish doors are closed, but people are still thinking it is a pathway where it is bullish path, but we beg to differ. So once we know where we are, we can find out and chart a path which is successful for all of us. We are not born bulls or born bears. We just try to use our experience to understand where, what are the milestones. So you will get to know from me and him over the next 1 hour. So some ground rules. As I said, we want to have it as a 2 hour and odd session. It will be bilingual. I'll speak mostly in English, and Vipin will speak mostly in Hindi. His Hindi trademark humor and insights. I'm sure most of you have come to listen to him. Then we will not talk about Cap Orbit. Please mute yourself. Abhishek, kindly mute Cap Orbit. Yeah. Let me mute him. Yeah. Okay. So kindly ask questions which are relevant to the topic. We will not be able to answer questions specific stocks.
First of all, we are not really qualified. We may not know all about stocks. We definitely deal in stocks, but not all of them. So it may not be a right forum. And you see, the other important thing is we are not SEBI registered advisors. So when we talk of stocks, please don't think of this as recommendations. So this is purely for educational purposes. So let me directly jump into the topic. See, if you take from the pandemic, that is when I think most of you have come, and you have had three bull phases in the market. The first one was, March 2020, when most people thought, the world is ending. Actually, Vipin that time thought we will hit a new high, which looked very strange, but that's what happened. So this was March 2020. So at that point of time, we had what is called Robin Hoods all over the world. The central bankers, put in huge amount of money. Interest rates came almost to zero, not almost, they came to zero, and bond yields went into negative, further into negative, oil went into negative, which are all things which we are not seen in years. Or in case of oil, we are not seen at all. So Nifty went up from 7,500 to 18,600. This was the first wave, you can say, the first bullish wave. So a gain of about 150%. The small cap went up by 4 times and the mid cap by almost 3 times. We did not have a micro cap index at that point of time, so we don't have comparison. So the gains were justified. They were justified because of easy money, and also Nifty was, beaten down to a pulp. So anything from there would have been a positive thing, and I think a lot of people capitalized on it. Finally, we went on to top in October 2021, so that the first phase which got over, first major phase, and that topped out at around 28p. Subsequently, we fell down, and somewhere in between March and June of 2022, we bottomed out across the board. So March, we had Bank Nifty bottoming out, FMCG index bottoming out, auto index bottoming out. In June, we had the Nifty bottoming out. So from there, we started a rally, which went on to December of 2022, where we crossed that 18,600 and we went to somewhere close to 18,900. And then that was the second phase, which initially a lot of people were skeptical. They followed on only in October of 2022, the last 2 months. That's exactly what happens. When you're bullish, you become bullish for an extended period of time. When you're bearish, you become bearish for an extended period of time. You miss the initial, let's say, the cream. So then when people were getting warmed up to a bull market, then the market fell down inexplicably in December, which is very, very rare. December is generally a good month, but this time it was an exception. And then January, you know what happened with, this Adani Group, the Hindenburg report, and then Adani took the entire market down, I would say. Even though the budget was good, then we went into February and March, where you had the Silicon Valley Bank, which had a problem, and therefore, again, the gloom and doom people came in and said that now the market is now in the bear phase. We both stood out and continuously told people not to worry about it, because there was a third phase coming. Typically, bull markets are in 3 phases. The first one was the pandemic phase. The second one was, where things got better fundamentally. And the third phase is where the blowout phase, where bubbles begin to happen. So we knew a bubble kind of phase will come, but we don't know exactly how big the bubble is. Nobody can predict. Only after the bubble is burst, you will know that. So that was the third phase. So in the first phase, you had easy money, in not so great fundamentals. In the second phase, you had tight money, but improving fundamentals. In the third phase, you had tight money, but fundamentals deteriorating. So therefore, but for a very short span of time, the FIIs came into the market between April and July, and then you had this, rally which was just took off. And you see, if you see the last 3 months, April they started with about 5,700 crores. In May they ramped it up to 28,000 crores, the net buying of FIIs. June they were almost the same at 27,000 crores net buying. In July, there was a drastic drop of 14,000 crores. That is when we noticed that there is some problem in the FII, momentum. Momentum had dropped. But the market went up, especially the mid cap, small cap, and micro cap specifically. Then August, you now have in July, we had a 14,000 crores, and in August, we had a minus 16,000 crores, close to minus 16,000 crores. So we are actually having FII negative
but people are behaving as if the bull market has got much more distance to go. So therefore, so if you take the markets as a three-legged stool, liquidity is the first leg. The liquidity is reducing now. That is by the strong hands. The fundamentals are deteriorating. The sentiment, of course, is euphoric. Sentiment being euphoric usually happens in the third phase of the, any bullish phase. That is what I said is the bubble phase, because the third phase will not depend on liquidity or fundamentals. So what liquidity is coming here now is what we call the operators liquidity or the retail money which is coming in. That is why you are seeing the micro caps going up much faster than the mid and small cap. Small cap is going a little bit slower than micro cap, mid cap slower, and the larger indices are still, they are much more, sedate. If you see this in Nifty, if you see from June 2022, to just give you an idea, Nifty has gone up by about 32% from June 2022 till last month, July 27th, when it peaked out at 19,900 and around 80. So that was 32%. Bank Nifty has gone up by 44. Bank Nifty is always much more exuberant than Nifty. Look at mid cap has gone up 51%. Small cap is matched mid cap at 52, and micro cap, it has gone like the Indian rope trick, as I call it. It's gone up 83%. Nifty 32, micro cap 83. See the contrast. If you take only from March 23, Nifty is about 20, Bank Nifty is about 20, mid cap 30, small cap close to 40, and micro cap close to 60, 57%. So you can see the huge outperformance of micro cap and small cap, micro cap over other indices. So what we call, somebody calls it Bhangar cap, Vijay Kedia calls it Bhangar cap, the micro cap, or what we used to call the Dharavi stocks. Dharavi is supposed to be, all kinds of people stay there in Dharavi. I've been to Dharavi many times. I've seen that some of the most expensive and latest TVs and fridges are there in the slums of Dharavi. I had to visit it quite a few times during my career because I was a market researcher. So I've seen. So therefore, it is not that all micro caps are bad or all small caps are bad, but to identify such gems, it's difficult. But otherwise, mostly these are called Dharavi or Bhangar stocks. So therefore, we come to, why are we feeling not so bullish? Let me put it this way. So one of the things which I said was on fundamentals, which are corporate results. Corporate results are showing stress across the board. If you look at in IT, Infy has reduced its guidance. TCS results were lackluster. HUL and other FMCG companies had poor results, much below expectations. Banks, HDFC and Canara have actually warned on the net interest margins. This is the first time big banks have warned on the net interest margins. Even SBI did not report that good results. Even in the press conference, the chairman and MD was on defensive. See, these are the signs you have to look at. Just don't listen to people who come like white papers on the TV and other social media, because finally markets are driven by fundamentals. That is why in May, June of 2022, we became bullish, because we know finally liquidity will come. It is a matter of time. So therefore, we had this fundamentals improving, and therefore the prices improving, and therefore people coming in through liquidity. So that is very, very important. And recently a shocking thing was the CFO of big NBFC, I think it was PEL, Premier Piramal Enterprises, who said we will have a credit event shortly in a month's time. What is a credit event? A credit event is a time when there will be some failures, bank failures, or not bank failures, failure from the people who take the loan, the borrowers, they will begin to default. So they're expecting a credit event shortly. So when the head of important NBFC talks about it, it is better to listen to. In fact, many of the bank guys are talking of, there being stress on their balance sheets. RBI themselves have put an additional clause for the banks to take care of the anticipated stress. Why is RBI doing it? They know that, there is a problem. So when there is a problem, they begin to tighten the screws. That is what they're doing. Those are the
hints which you need to take and then realize whether today what we are we better off than what we were 6 months, or are we worse off? The data tells us that we are certainly worse off and things are going to get worse. To take policy of RBI, I said is tightening. Recently also they have tightened because HDFC Bank actually misused the CRR when they merged with HDFC. So they want to squeeze out HDFC Bank float. So they have brought in special tightening measures. So instead of increasing CRR, they have done this through backdoor. So you need to be very careful. Now the other thing is monsoons. Now, if you talk to somebody on the social media or if you hear from the experts on TV, incidentally, we are not experts, we are experienced people. Experts will never make mistakes. They'll always be correct. They'll never accept mistakes. They'll never make mistakes. We both are experienced people. We make mistakes all the time and we do course correction. And that is why we have survived, by actually being in the market, whereas the experts actually never ever trade. For instance, PR Sundar, example, I'm straight away giving his name. His balance sheet, if you look at it, last year he earned more through seminars than his personal trading. So there are many such experts. Some of them may not even trade. So monsoons, if you look at it, most of them will say it's normal. Now, it is normal in the sense that if you put your head in the refrigerator and your legs on in the oven, microwave oven, then on normal, if you take the temperature, it will be, if you take an average temperature, it will be normal. So that is exactly what is happening as far as monsoons are concerned. See, we don't like to talk of bad news, but we have to talk of news which is correct. The correct thing is, if you take distribution of monsoons, you'll be surprised that 19% is excess. So you saw the floods in Himachal Pradesh, floods in Punjab, floods in various other places. So therefore, you have had excess, nearly 20% is coming in excess monsoon, which is not good for sowing. Then you have close to 40%, which is deficient, which means you just don't have any pre-monsoon, monsoon rains for you to do the sowing. Only 42% is normal. So if you take cumulative, this is cumulative from June 1st, we are talking about. And today, the SkyMet gentleman says that August has been very bad and September, the first 10 days will be bad. So normally monsoon is between June 1st and September 15th. That is what is the monsoon period. So this year, for the first time, as far as I have been seeing monsoons for the last 15 years, I've been tracking them. First time we are seeing, we call India has got normal monsoon, but less than 40%, around 40% is got normal actually. And we have got nearly 40% is deficient. And if you look at the sowing data, which is there available in by the government of India, you're seeing that across the board sowing has been reduced by 10 to 15%. This data is available every week. The only place where some sowing is improved is rice, which is only about 3%. So that is no great shakes. We need to be growing at least 10, 15%. We are just growing 3% sowing as far as rice is concerned. So when we look at monsoons in the next 1 month, then we are staring, unfortunately, at a food crisis. People make fun of tomato, and all. The point is, it is not tomatoes which are creating the problem, because tomato is a quick, quick crop. You can just plant tomato every 3 months, you get the crop. It is not onions. Onions have been banned now, export. Why? Because the government of India knows that onions are in short supply. It is across the board. Dal, jawar, millets, rice, everything is in trouble as far as the sowing is concerned. So we may not know about it right now. We will probably get to know about it in October. But by that time, the market would have realized, the smart people have already realized it and they are selling. So you should know this. And you cannot simply say, buy above this, sell below this. I want 20,000. I will get onto a plane. Some gentleman I know from IIFL head, he said, I will get onto a plane and see that by the time I reach Mumbai, it will be 20,000. That never happened. You cannot dictate to the market. That gentleman is 60-year-old, but still believes that, he can do anything and dictate. So we should not be led by numbers like 20,000, 25,000, 30,000, whatever numbers people talk about. Even if we talk about some number, you should question us. Why should we have numbers of that nature? So if you look at food inflation, I believe it will be very high, and government of India is trying its best. Government of India is doing its best. They are preempting. But you see, we cannot fight against the rain gods.
or the lack of. So therefore, they decide what we decide. Then, if you look at stock prices, I look at Bank Nifty as most important, more important than Nifty. I don't trade much in Nifty or Bank Nifty. But the reason I look at Bank Nifty is because that is where the money is. When the FIs come into India, or when a very large investor comes into India, they always look at Bank Nifty. So they always buy banks. And you can see the Bank Nifty is much weaker than Nifty for quite some time. HDFC Bank is weak. SBI is weak. A lot of banks have not reaching new highs. That is because you see that is how the economy is defined. Banking stocks define the economy, though there are only 12 in the Bank Nifty, but still they define the economy. History shows that always Bank Nifty decides which way the market will go ultimately. If you look at even 2022, I said Bank Nifty bottomed out in March 2022. Nifty bottomed out only in June 2022. Similarly, now it has almost topped out at the same day. That's what Nifty and Bank Nifty is concerned. But the acceleration or downward drift is more in Bank Nifty than in Nifty. So that is a clear indication. And if you look at really other stocks also, you have been, they are falling down, but nobody's noticing. You see, I had put it in my Twitter feed one day that I will sell everything that was in June end somewhere. That time the Nifty was only 18,800. So my portfolio, overall portfolio, which about 40, 50 stocks, never saw 19,000. Never saw. So market, of course, saw 19,000 and went above, and people mocked saying that you sold it too early. Actually, we look at index but trade in stocks, all of us. So if we look at stocks, for instance, I had ITC. I sold now at around somewhere at 556. I was just looking at the portfolio. So now ITC is much lower than that. Or when I sold, I put some numbers here. So you take, I had CPSE ETF. It's just gone up by about 7%. Then you took HDFC Bank is down. My portfolio, I'm just reading out. SBI I had, which is almost the same. Talk of when we sold it, 18,800 to 19,300 now. Then I had Reliance, of course, Reliance has slightly gone up. I had the BEL, Bharat Electronics Limited, which is just 126 then and 134. So if you really look at across the board, ICICI B22 had, which was 68 at that time, now it is 70. So no great change. Axis Bank is down. Then Amar Raja Batteries had, which is down. Amrutanjan, so on and so forth. So it is not that, the index is what we should look at. We should look at our portfolio of stocks. So that is as far as the portfolio is concerned, as far as the market is concerned. Now, before I close, I just want to talk about 2-3 things. See, right now we are having a Nifty P of 22. I myself have been telling people that the Nifty will peak out at around 30 for this bull market. So we probably will have one down leg, and then final top could be 2 years down the line or something. But right now it was at 24 about last month, and we feel it has peaked out. So now Nifty is only 22. But when it was 19,900, Nifty was 24. So 24 is almost there. Anything above 26 is danger territory. So we came almost near danger territory, and then we have started falling. So before I close, I'd just like to talk about 3 things, not even 3. One point, which is, see, people are today looking at defense, railways, and shipbuilding, as that is going to be the future, and you can make huge amount of money. I would like to just say here that in this budget, defense and railways have got an allocation. Defense got for the modernization has got an additional allocation of only 7%. Only 7%. Whereas in railways for capex, only 6% over the previous year. In space, it's actually less than 8%. I mean, it is less by 8%. Sorry, less by 8%. The Chandrayaan, for instance, the budget has actually been cut by 32%. It's actually been cut. And then there is something called Aditya L1, which is an observatory which will, observe the sun. So that also has been cut. The defense budget has been, the space budget has been cut. So you see what has happened today in space, defense, or in shipbuilding has been orders which have come across sometime in the last 3, 4, 5, 6 years, because these are long gestation period. So now what orders they are getting, the profitability will happen only about 4 or 5 years later.
So to expect some doubling of defense stocks or railway stocks or space related stocks, you need to be careful. We are not recommending anything that you short sell or whatever. At least what I can only say personally is I am not invested in that, in any of them. I'm invested only in pharma. I have 2 positions in Nifty for on the weekly option, put options, and for the next month, there's an option, which is again a put option. So to just conclude, before I hand it over to Vipin, I would like to say this is not a bull market as far as I'm concerned. This is a bull's market. So a lot of bulls roaming around, hoping that that will happen, this will happen. India is a great. India was a great country in March 15th, April 1st. Why were these guys not talking about India as a great country? We all know India is a great country. India is a bull market overall. So where is the question suddenly? What has happened? What has changed that, India has become, glorious only in the last 2 months? So this is what happens. When you take a position, you feel everything is hunky-dory. When you take a bull position, when you take a bear position, you feel everything is bad. So nothing has changed. In fact, things have got worse since March, because even Fed has started increasing rates since March further. And overall money is tight. So therefore, I would like to end it by saying, I believe it's a bull's market and not a bull market. I am very careful. I leave it to the judgment of the people who are here to take their own decisions. You're much more intelligent, much more savvy than me, I believe. So kindly take your own judgment. No recommendations. This is a bull's market and not a bull market. Vipin Bhai, thank you very much for giving me this opportunity. I am just stopping here. Thank you. Thank you, Sunil sir, for your great deep analysis and data. So, हम चूंकि जिस चीजों पर आपने बात कर चुके हैं, जिस चीजों को आपने समझा चुके हैं, मैं उसको बाइलिंगुअल में नहीं जाऊंगा कि हाँ मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं. जिसको समझना है वो समझ जाता है. बहुत ही बेसिक सॉफ्ट लैंग्वेज आपने यूज करी है. तो हम आते हैं थोड़ा सा एडिशनल कि हाँ कॉशन जो चीजें आपकी हैं, कंक्लूजन आपका है, बस मेरा नजरिया कुछ अलग होगा कि क्यों हम यहाँ पे कॉशन है. या मैं यूं कह सकता हूँ कि मैं पिछले 2 महीने से कॉशन हूँ. मैं पिछले 2 महीने से पहले से ही बोल रहा हूँ, जून में ही बोल रहा हूँ, मई के एंड होते होते, कि यू हैव टू जस्ट ट्राई टू एग्जिट, कॉशन हो जाओ. बेहतर है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पकड़ लो कि हाँ इसके नीचे आप निकल जाओगे. अब अगर कोई बात करे कि निफ्टी की अगर आप बात करें तो अपने निफ्टी ऑलमोस्ट 18,400, 500, 300, 400 का एक रेंज था मई में, जून में भी था. बट सडनली एक स्पाइक मूवमेंट आया और 10% की रैली हो गई. सॉरी 5% की रैली हुई. 1,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट रैली हुआ. 1,000 से 1,500 पॉइंट का रैली हुआ, जो भी एक राउंड फिगर था. या यूं कहें कि 1,000 पॉइंट हायर देन दिसंबर हाई. लास्ट दिसंबर का जो हाई था 18,900, उतना सफर हमने तय किया हुआ था. तो एकदम से जो 2,000 पॉइंट का सेल ऑफ आया, वो आया अडानी जी के कारण. एंड अडानी जी के कारण बाकी स्टॉक्स में क्यों गिरावट आई? ऑब्वियसली गिरावट इसलिए आती है कि जब सेंटिमेंट्स खराब होते हैं और लोगों की बड़ी बड़ी पोजीशनें होती हैं एक इतने बड़े ग्रुप में, क्योंकि वहां पर 8-10 कंपनियां हैं इंक्लूडिंग एसीसी, अंबुजा एंड मेनी मोर, और एक हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनी खड़ी है और एक बहुत बड़ा ग्रुप है. तो अगर वहां पर ह्यूज M2M लॉस होगा, चीजें होंगी, तो उसका एडजस्टमेंट कहां से करेगा? जहां पर शांति से प्रॉफिट में बैठा है. तो सेल ऑफ ओवरऑल मार्केट में जितना भी हुआ था 16,800 तक, वो मार्केट का कहीं पे भी फंडामेंटल प्रॉब्लम किसी और स्टॉक को लेके नहीं हुआ था. जस्ट फॉर कि भाई शॉर्ट हो गया, मुझे लॉस पे नहीं काटना. वो नेचर ही है लोगों का कि नहीं, हम तो 4,000 रुपया देख चुके अदानी का और ये गिरा जा रहा है, मेरी पोजीशन कट रही है. पीपल नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सब शॉर्ट हो जाएगा, सब रिजॉल्व हो जाएगा. तो एवरेज करना एंड क्या बेचना, जहां पर वो अच्छा है, जहां पर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, उसको बेच के मार्केट में एडजस्ट किया. और जब सेल ऑफ शुरू होता है तो एक फ्लो होता है अदर भी कि नहीं मुझे नहीं प्रॉब्लम है, फिर भी अरे यार ये तो गिर रहा है, स्टॉप लॉस कट रहा है. यार जो प्रोफेशनल सिस्टम बेस्ड ट्रेडर हैं उनका तो सिंपल सा काम है कि
हम कोई भी चीजें ट्रेल कर रहे हैं, तो जैसे मैं कोई सिस्टम यूज करता हूँ, सपोज कि मैं प्रीवियस डे लो के नीचे कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं करता अगर मैं एफएनओ में खड़ा हूँ, तो मेरे लिए तो फिर जरा सा भी आप जर्क दोगे तो आई विल एग्जिट, जरा सा क्लिक करोगे आई विल रीलोड, आई विल एग्जिट, आई विल रीलोड, आई विल कंटिन्यूअसली डू सेम थिंग। सो मार्केट में जो पिछली गिरावट हुई थी 2000 पॉइंट की ही ऑलमोस्ट हुई थी, 16,800 18,900 से, वो पूरा का पूरा एक से ब्रेक था ड्यू टू अदानी। बाकी स्टॉक्स जो भी थे जैसे भी थे वो सिर्फ एक बेसिक सी प्रॉफिट बुकिंग ड्यू टू फियर, दैट वाज नॉट द फ्लो ब्रेक। अब उसके बाद ये क्या हुआ है कि ये जो मार्केट आया, इसमें दो चीजें पॉसिबिलिटी थी कि अगर 18,900 में से टॉप, तो वहां से या तो पुल बैक होगा जो ऑलमोस्ट डबल होता है 18,900 या 18,600, या अगर उसके ऊपर जाना है तो फिर 18,900 के ऊपर जाएगा और जहां पे भी जाना होगा वहां पर जाके ब्लो ऑफ कर जाएगा, एंड हो जाएगा। एक बेसिक सी थ्योरी होती है कि कोई भी चीज एक्सपेंसिव एंड वैल्यू के बीच में ही साइकिल में घूमती रहती है। एक टाइम आएगा कि नहीं बस इनफ, अब इसके बाद ये बहुत महंगा है, जहां से पोजिशन में लोग छोड़ देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। और बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में बेइंतहा इन्होंने रैली करी मिड कैप स्टॉकों में, स्मॉल कैप स्टॉकों में। ये वही स्टॉक है ना जो पिछले 2 साल में चले भी नहीं थे। आप अगर जाके देखो तो ये ज्यादातर वही स्टॉक है जिन्होंने इन्होंने जिन स्टॉकों को इन्होंने पिछली रैली में 2020 के बॉटम से घसीटते हुए 2021 अक्टूबर तक जो रैलियां करी थी, जो पागलपन किया था, फॉर एग्जाम्पल कि टीटीएमएल जैसा एक बुलशिट स्टॉक 1.5-2 रुपया चल रहा था, उसको 300 रुपए तक घसीट के ले गए, और उसको जब पटका तो फिर 40-50 रुपया तक शायद पटक दिया था, और अभी शायद 70-80 रुपया चल रहा है, बट वो 300 नहीं है, अभी वो नहीं गया। तो जिस जिसमें इन्होंने ट्रैप किया था उसको छोड़ के इन्होंने जहां तक नहीं कुछ कर पाए थे ये वहां तक लेके गए। वाई आई एम डिस्कसिंग दीज थिंग्स कि ये क्या है, इट्स जस्ट कहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का वे होता है मार्केट में, कि एक कॉमन साइकोलॉजी क्या होती है, ओवरऑल मास की साइकोलॉजी क्या होती है कि वो अपने खरीद रेट से नीचे नहीं बेचना पसंद करता, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसने खरीदा क्यों था। बस उसको लगा है कि रोज ऊपर जा रहा है तो कल ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद ऊपर जाएगा, 3 साल बाद ये बहुत ऊपर जाएगा। वो नीचे नहीं बेचना पसंद करता, नीचे में उसको एवरेज करना होता है, और एवरेज तभी करता है जब तक उसका अकाउंट ना खुला हो। जैसे हमारा बैंक अकाउंट एक बार खुल जाता है तभी हम उसमें आरडी अकाउंट चलाते हैं कि चलो हर महीने कुछ पैसा डालते हैं। वैसे ही जब भी हम एक शेयर भी आज हम खरीद ले रिलायंस का, एंड रिलायंस सबसे बड़ा ब्रांड की बात कर रहा हूँ, और अगर वो ऊपर नहीं जा रहा है तो हम नहीं बेचते। नहीं बेचा लोगों ने, 2010 से लेके 2017 तक वो लगातार नीचे ही था, 1,000 रुपए का हाई बना के 500 रुपए का लो बना के वो 7 साल तक चला नहीं स्टॉक। लेकिन जो लोगों ने एक बार खरीद लिया उसको बेचा नहीं, 7 साल में पैसा डबल हो सकता था एफडी में, जबकि ये रिलायंस में अपना भाव भी नहीं मिल रहा था 7 साल बाद, 7 साल का ब्याज इन्फ्लेशन सब कुछ जोड़ लो। बट पब्लिक क्या कर रहा है, एवरेज करता चला गया, एवरेज करता चला गया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से घसीटा मार के उड़ाया गया है स्टॉकों को, उन स्टॉकों को उड़ाया गया जो पिछली बुल साइकिल में जो 2020 से 21 तक आंधी तूफान की तरह चली थी, सिर्फ और सिर्फ क्यूई के पैसे से। तो उसमें जो नहीं चल पाए थे उनको घसीट घसीट के लेके चले हैं। ओके, इस पूरे बुल मार्केट में आप देखो तो एचडीएफसी ने क्या परफॉर्म किया, कोई नहीं, खाया मारा नहीं, इन्फोसिस रिकवर हुआ नहीं, टीसीएस हुआ नहीं, रिलायंस ने परफॉर्म किया नहीं। पिछले 3 साल से वो उसी रेंज में एचडीएफसी, कोटक, रिलायंस सारे पड़े हैं। हम लोग को लग रहा था पिछले साल जब 2022 में, जब मई जून में 15,200 का बॉटम लगा था, तो सिचुएशन लग रही थी कि नहीं बहुत सब कुछ अच्छा रहेगा आगे, और जो प्रॉब्लम थी मेजर वो सब रिजॉल्व हो गई और बहुत पैसा आने वाला है। बट पूरे के पूरे 12 महीने बाद मार्केट ऊपर आ गई, स्टॉक्स ऊपर आ गए, बहुत से ऐसे थे जिनको चलना था वो चले, बहुत से ऐसे थे जिनको खूब चलना था
रिकवर होना था, नहीं चले। जैसे आपके आईटी पैक नहीं चले, वैसे जैसे रिलायंस नहीं चला, बैंक, प्राइवेट बैंक में बैंकिंग स्टॉक्स आप देखिए नहीं चले। तो अब वहां से ये चीजें समझ में आई कि तीन चार चीजें थी इंपॉर्टेंट, कि अपने जो भी दिग्गज हैं, जिनको आप एक तरह से जेम बोलोगे, कि ये सब स्टॉक मार्केट के जेम्स हैं, एकदम प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जिनको चलना चाहिए था वो नहीं चले। आपकी करेंसी अप्रिशिएट होनी चाहिए थी, वो डेप्रिशिएट हो गई करीब 15%। क्योंकि 2021 के हाई से 2022 के लो में जो करेक्शन है, उसमें आपको ये लगता है कि निफ्टी ने 18% का करेक्शन दिया है। लेकिन अगर उसी पीरियड में आप डॉलर में करेक्शन देखते हैं तो दैट इज 31%। क्यों? आप डाउ जोन जब देखते हो तो बोलते हो 20% गिर गया, 30% गिर गया, 20% से ज्यादा हो गया तो दैट इज ए बियर मार्केट स्टार्ट हो गया। 32% गिर गया था, 32 से 35% गिरा था नास्डैक। तो बात होने लगी कि बियर मार्केट स्टार्ट हो गया। तो आप वो सारी जब इंडेक्स डॉलर में देख रहे थे, तो आप अपना इंडेक्स भी देखिए ना डॉलर में। तो हम 31% गिरे थे इन द डॉलर टर्म, नॉट रुपीज टर्म, क्योंकि हमारा कंटिन्यू यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा था, मतलब आईएनआर डेप्रिशिएट करता चला जा रहा था, कंटिन्यू डिप्रिशिएट हो रहा था। तो हम, इसका मतलब कि ये जो पूरी की पूरी ये जो साइकिल आई है, ये अब कहलाती है इन द इंटरनेशनल करेंसी टर्म कि ये एक सिर्फ पुल बैक रैली है, ये नया हाई नहीं है। कभी अभी तक कहीं पर भी नया हाई नहीं दिखा इन द डॉलर टर्म। क्योंकि जिस समय 18,600 का हाई लगा था 2 साल 2.5 साल पहले, 2 साल पहले, तब आपका डॉलर 72 73 के आसपास चल रहा था, और अब वो चल रहा है 83 84। 10 रुपया का मतलब होता है 14-15%। अगर आप 14-15% जोड़ते हो 18,600 में, तब जाके आप बराबर होते हो, जो कि आप वहां नहीं, आप सिर्फ 5% ऊपर वहां से गए। तो ठीक है। तो अभी ये जो हम मार्केट देख रहे हैं, जहां पर अब हमें ये जो साइकिल दिख रही है, क्योंकि जो डेटा सैनिक सर ने शेयर किया वो एकदम रियल टाइम फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब आपको पता चल गया। अब मैं आपको जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली पैटर्न क्या है, टेक्निकली पैटर्न क्या है, और क्या एक अंदाजा लग रहा है कि ये जो चल रहा था ये है क्या। दिस वॉज अ बुल मार्केट? नो, दिस वॉज जस्ट ए पुल बैक मार्केट, जिसमें खींच के मार्केट में मोमेंटम जनरेट करना है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेटर को ले आना है, ताकि जब वो आगे इस पूरी बियर साइकिल में डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएं, कूल डाउन करते जाएं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा एवरेज करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए मोस्टली स्टॉक में। तो अभी जितना भी स्ट्रक्चर मैंने देखा था कंटिन्यू, इसीलिए मैं लगातार शेयर कर रहा था कि बस आप जहां पर भी जो मौका मिले आप निकलो, क्योंकि जो आपने असल में मूलधन कमा लिया है, निफ्टी वाइज भी अगर आप देखो तो 7500 से आप 2 गुने से ज्यादा रिटर्न आप कमा चुके थे। उसके बाद आपको एक अच्छा खासा फिर से पुल बैक मिला पिछले 1 साल की रैली में। और अगर आप स्टॉक वाइज देखें तो कहीं पर आप 4 गुना है, कहीं 8 गुना है, कहीं 10 गुना है, कहीं 20 गुना है, कहीं 30 गुना है, बहुत गुना है। क्योंकि 100 रुपया का अगर अदानी 4,000 गया था तो 40 गुना था। तो आप एन एवरेज 10 गुना के भाव पे बैठ रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में, 2.5 से 3 साल जो भी लगाए टोटल। तो ये जो मुझे यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिकली जो पूरा पैटर्न दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप है। क्योंकि अगर इस सेटअप नहीं होता तो आज आपका रुपया 72 के भी नीचे होता, बे इंतहा फंड आ रहा होता, न कि फंड जा रहा होता। अब तो एक दो चीजें मैं और थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम लोग चले आएंगे क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक ही चीज को डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, फलाना ब्रोकिंग हाउस, फलाना रिसर्च सेंटर एंड ये वो, तो अगर कोई कहता है कि मार्केट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, कोई कहता है कि अब तो अमृतकाल शुरू हुआ है, कोई कहता है कि 2021 के भाव से भी ये मार्केट अभी सस्ता है,
और बड़े बड़े टारगेट दे रहा, तो ये बड़े बड़े टारगेट उनको भी तो दिख रहे हैं जो बेच रहे हैं। ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि एफआई की बिकवाली कंटिन्यूअस पिछले 2 महीने से क्यों चल रही है। उनको जिनका पार्टिसिपेशन, मैं आपको खाली इतना बता दूं, अगर मुझे यहाँ पे सैनिक सर या अभिषेक कोई भी एक कंफर्मेशन दे दे कि आईटीसी में एफआई की होल्डिंग कितने परसेंट की है। सैनिक सर, I will find out and give you exact, because ITC, the BAT is holding some quantity that they can't sell. I'll give you the exact one. 43% एफआई की होल्डिंग है। Yeah, that's right. 43 it is. Correct. ओके, तो फ्लोटिंग स्टॉक कितने हैं सर स्टॉक मार्केट में आईटीसी के? कि अगर मैं ये बोलूं कि एफआई के पास जो 1% की होल्डिंग है आईटीसी में, उसकी वैल्यू कितनी है? I have not calculated. Okay. But anyway, it is, yeah. आई थिंक 30,000 करोड़। 1%, 1% उनके फ्लोटिंग स्टॉक मैंने चेक किए थे। तो अगर वो खाली 1% अपना स्टॉक बेच दें तो होता है 30-31 हजार करोड़ रुपए। अगर वो खाली एक स्टॉक में 1% की होल्डिंग बेचना शुरू कर दें तो कई महीने तक म्यूचुअल फंड उसी पैसे को ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि वो चाहे कि मैं रोक लेता हूँ या किसी का प्राइस फॉल ना हो, मैं इसको ऑब्जर्व कर लूं। 30,000 करोड़ रुपए का एसआईपी नहीं आ रहा है। तो एफआई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से। इस बात को आपको समझना, ऐसे समझना है कि आप जाके ये समझो कि कोई भी कंपनी की टोटल फ्लोटिंग स्टॉक कितना है, उसका नंबर देख लो, लाख है, करोड़ है, उसका करंट प्राइस क्या है, इसका मतलब ये टोटल मार्केट कैप है इस स्टॉक के, और उसका कितना परसेंट एफआई होल्ड करके बैठा है। अगर वो सिर्फ 1% बिकवाली कर दे तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ेगा। और किसी भी एक कंपनी के खाली 1% अगर वो रिलायंस में बेचने पे आ जाए, इंफोसिस में आ जाए, टीसीएस में आ जाए, एचडीएफसी में आ जाए, 1% स्टॉक निकाल दे तो क्या हालत होगी आपकी। आपके पास संभालने के लिए पैसे नहीं है। एफआई इसलिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। अगर आप टोटल जाके उनका इन्वेस्टमेंट चेक कर लें तो वो शायद 55 बिलियन या उससे भी कहीं ज्यादा है। इसका करेक्ट डेटा यहाँ पर काफी एक्सपर्ट लोग हैं जो अपने ट्विटर प्रोफाइल पे डाल सकते हैं, ताकि मैं इसको दोबारा से मैं भी इसको फ्लो कर सकूं कि देख लो एफआई का नेट इन्वेस्टमेंट कितना है एंड व्हाई एफआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एफआई की बात क्यों कर रहा हूँ? एफआई के पास जो पैसा है उसमें मेजर कंपोनेंट क्यूई का पैसा है, जिस पर आज की डेट में वो हाईएस्ट ब्याज पे कर रहा है, जबकि वो 0% की इन्वेस्टमेंट पे आया था मार्केट में। टिल कोरोना तक लंबे अरसे से उसने एंजॉय किया है। अब उसके पास एक हाईएस्ट एक्सपेंसिव मार्केट में होल्डिंग पड़ी है जिस पर उसको ह्यूज ब्याज पे करना पड़ रहा है। उसका नेट प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा अगर उसने मार्केट से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। ह्यूज होल्डिंग खड़ी है, किसी को आइडिया नहीं था कि हम इतना प्रेशर में जाएंगे कि इतने ह्यूज इंटरेस्ट रेट पर हम टिके रह जाएंगे और आगे और बढ़ाए जाने की का वार्निंग कंटिन्यू फेड का आ रहा है। पता नहीं क्यों इस चीज को लोग नहीं समझ रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए पेन बर्दाश्त कर लेता है कोई भी कि हाँ थोड़े टाइम के लिए आया है, इंटरेस्ट रेट का प्रेशर पिछले 1.5 साल से झेल रहा है और वो कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है। यही कारण है कि जो सिचुएशन है, जो हर किसी की बैलेंस शीट खराब है आज की डेट में। अब कुछ लोग सोचते हैं ठीक है खराब है तो थोड़ा दिन और चलेगा, बुल मार्केट चलेगा। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है कि किस दिन कंटिन्यूअस होगी। आप देखो कि थोड़े टाइम पहले तक एक तरफा जंप चल रही थी मार्केट में, ये लोग गैप अप, ये लोग गैप अप, 18,000 से 19,000 एक 900 तक का जो खुमार था वो गैप अप गैप अप गैप अप करके गई। 5वां हफ्ता था ये वाला जो निगेटिव क्लोज हुआ है।
एवरी वीक क्लोज इन निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यू 5-6 हफ्ते में आपने, उससे कम हफ्ते में आपने जंप करके 5% से ज्यादा मार्केट उड़ा दिया। 18,000 का लो मारा था मई जून में, और वहां से जंप कराया सीधा 2,000 का, मतलब 10% का जंप कराया। और उसके बाद अब वो पिछले 5 हफ्ते से स्लोली 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 वो सेल ऑफ कर रहा है। तो इस बात को मैं टेक्निकल वे में समझाने की कोशिश कर रहा था। जो भी प्रैक्टिकल यहाँ पर जिस तरीके से प्रॉब्लम मार्केट चलती है उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, न कि फंडामेंटल डेप्थ कि इस समय क्या चल रहा है। वो इंफॉर्मेशन आपको सैनिक साहब से मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा आपका कंसर्न क्या होता है कि आप अपने भाव पे एक बार देख लो, या अपने भाव से ऊपर का जो भी देख लो भाव, उससे नीचे आप बेचते नहीं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं पता है। प्रॉब्लम ये है कि आज जो स्टॉक 500 रुपए में दिख रहा है उसमें 100 रुपया तक गिरने का दम है। तो अगर आपको स्टॉक 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया नीचे मिल रहा है और आपसे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, और आप उसको होल्ड करोगे, एवरेज करोगे, तो आप एवरेज करते रहोगे अगले 2 साल तक। क्योंकि अभी एक चीज का और बहुत बड़ा प्रेशर है, अगले 1 साल में इलेक्शन है। अब लोग कहते हैं कि इलेक्शन से पहले ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो 2019 का इलेक्शन में याद कर ले लो। जब 2018 में इतनी पिटाई हुई है, पूरे इलेक्शन के रिजल्ट के आने तक खूब पिटाई हुई है, और एक्चुअल जो टॉप लगा था वो जनवरी 2018 में ही लग गया था। अब आपको इसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होगी। आप किसी भी म्यूचुअल फंड का बेसिक यूजर है, वो जाके सिर्फ ये देख ले कि 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2020 तक, बिफोर द कोरोना, मार्केट के टॉप लगने से जस्ट पहले तक किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का रिटर्न क्या था? सबका माइनस में था। पिछले 2 साल में सबके एनएवी खाली माइनस में थे। ये चल रहा था इनसाइड स्टोरी। तो अब ये जो स्टोरी है, अगर आज आप देखो कि जो टॉप लगा था 2021 अक्टूबर में 18,600 का, आप आज की डेट में अगर आप चेक कर लोगे तो शायद आपको बहुत से म्यूचुअल फंड के रिटर्न में, एनएवी के कंपैरिजन में, अक्टूबर 2021 से आज के भाव में कहीं पर कोई खास एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको माइनस में मिलेगा, किसी का माइनस रिटर्न होगा। कंपेयर करना होगा स्टार्ट पॉइंट अक्टूबर 2018, माइनस में दिख रहे होंगे, जबकि आपको नीचे खूब खरीदने का मौका मिला सस्ते में, पहले का भी था माल। तो आपको कंपेयर करोगे तो आपको वहां पे भी माइनस में मिलेगा। न जाने कितने लोगों के पोर्टफोलियो आज की डेट में भी माइनस में होंगे, और उनको उम्मीद होगी कि 20,000, 21,000, 22,000, 23,000 आएगा, और मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, और सरकार में कोई समस्या नहीं आएगी, यही जो चल रही है बीजेपी किसी तरह से पूर्ण बहुमत से आएगी। ये सब आपके सपने हैं। क्योंकि जब आप सुबह सो के उठते हो तो जितना प्लानिंग किए रहते हो कि आज मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, जब आप खुद का तय नहीं कर पाते हो कि सही शाम तक कैसे बीतेगी, तो आप बैठ के कैसे तय कर सकते हो कि सरकार का क्या होगा, किसी कंपनी का क्या होगा, उसकी कंपनी के फंडामेंटल का क्या होगा? वो सब आप कुछ नहीं तय कर सकते हो। आप खाली इतना अंदाजा लगा सकते हो कि ये रिस्की जोन है, ये हौले हौले काटेगा, जोर से काटेगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो अभी मैं सिर्फ इस सैनिक सर के फंडामेंटल इनपुट्स मिले हैं, इस जो निगेटिव फंडामेंटल दिख रहे हैं उसके बिहाफ पे मैंने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और टेक्निकल डेटा के हिसाब से आपको समझाने की यही कोशिश करी है कि ये मार्केट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्की जोन पे खड़ी है, और it's not a bull market, it's a just pull back. If you look in dollar currency, we are still 13% below the October 2021's high. That's all. तो सैनिक साहब, मुझे इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कहने को, क्योंकि मेन डेटा जो था वो आपने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन
तो उससे आइडिया Yeah. Question answers will go. Vipin, thank you. Wonderful as usual. Certainly, I think a lot of people may want to ask questions. We can take questions for about 1 hour from now, I suppose. Abhishek bhai, please just coordinate on this. Thank you on that. Thanks, Vipin bhai. Fine, fine. Thank you, Vipin sir. आई थिंक इट विल बी बेटर कि अगर पीपल खुद अपनी क्वेरी करें तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमें एक्चुअली इस समय क्या जरूरत है, या किसी को कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, या हम क्या गलत सोच रहे हैं। और आई एम सॉरी, मेरी कोई खास तैयारी थी नहीं। मैं पिछले 1 हफ्ते से वायरल फीवर के साथ एंजॉय कर रहा था, तो बस थोड़ा सा काम लायक हुआ था, तो सैनिक सर ने कहा कि थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, शेयर करनी है, तो मैं साथ देने के लिए आ गया। लेकिन ज्यादा दिमाग तब खुलेगा कि जब क्वेश्चंस आएंगे, लोगों की क्वेरी आएंगी, तब समझ में आएगा कि क्या डिस्कस करना चाहिए। Sainik sir, I think there are no concrete question as such, and no one is like requesting for a speaker. They are not able to. I think I don't know whether they are able to meet the speaker request. Am I audible? At least they can ask in the chat. I mean, chat box, like somebody's asked English. Tamil Selvan has asked. Tamil Selvan, I have spoken in English. Vipin has spoken in Hindi, but I'm sure you understood much part of it. Tomorrow we are doing a session again, the same session in Clubhouse. So maybe you will be benefited at that point of time. But because this audience is both English and Hindi, so we need to meet up to expectations of everyone. No? So you will have to forgive us on that. फिलहाल सर हमारे साथ पार्थ हैं, इनके साथ कुछ क्वेश्चन होंगे, और बाकी लोगों को हम फिर से रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी सवाल है ऐसा जिससे हम खुद कुछ एक्सप्लोर कर सकें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ भी माइंड में था नहीं बहुत ज्यादा मेरे साथ तैयारी। तो प्लीज अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन लेके आए। एंड पार्थ जी प्लीज आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते। विपिन जी नमस्कार। You are always good as past. Thank you very much for आपने जो भी अभी बताया. We really thank you for that. विपिन सर एक जस्ट टाइमलाइन के हिसाब से क्वेश्चन था सर, if you allow तो मैं I can ask. Yes, please. विपिन साहब ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके साइकोलॉजिकल लोगों को कंफ्यूज करके एक नया छोटा सा ETH बना के वहां से जो आप बता रहे हैं QE का या फिर एक मंदी आ सकती है शायद जो अपने देख रहे हैं, तो इस तरह की कुछ पोजीशन सर बन सकती है आपके हिसाब से? That's what all I want to know, sir. सर एक चीज अगर आप देखो तो वीकली जो क्लोजिंग हुई है ना, ये 5th वीक है जो निगेटिव क्लोजिंग हुई है, और अगर आप डॉलर में देखेंगे तो ये 6 वीक है, 6ठा हफ्ता है जिसकी निगेटिव क्लोजिंग हुई है। कल अमेरिकन मार्केट नीचे से थोड़ी सी रिकवर होके ग्रीन में बंद हुई है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है पुल बैक की। हम इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते जब हम ऑलरेडी ये ATH जो भी लगा है 19,000 के ऊपर का, हम इसमें भी हद से ज्यादा फियर में थे कि पता नहीं कब कहाँ किस मोमेंट पे मार्केट अपनी पोजीशन को निगेटिव में लेके चला जाए। तो अब इस सिचुएशन पे हम कोई भी मतलब समझिए खिलाड़ी बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को लगता है ये कि यार निकल जाना चाहिए था, नहीं निकले और छूट गया और नीचे आ गया है स्टॉक्स, तो मुझे थोड़ा सा उम्मीद ये है कि शायद अगला जो 1 हफ्ता है जो एक्सपायरी का है, मेरे भी कि शायद थोड़ा पुल बैक हो जाए। बट कंटिन्यूअस अगर आप वीकली देखो तो 5 हफ्ते अगर निगेटिव गए हैं तो सीरीज कंप्लीटली बेरिश ही है। चाहे वो डेरिवेटिव वालों ने पूरा अगर मतलब जिनका जुलाई सीरीज का एंडिंग भी बेरिश था,
क्योंकि एक हफ्ता उधर का है और उसके बाद 4 हफ्ते इधर, जो जितनी भी गई है। तो आई होप कि अगर अगला हफ्ता भी बेरिश हो सकता है, या हो सकता है एक पुल बैक हो जाए, कि हो सकता है। अब ये डिपेंड, एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम्स डिपेंड कहाँ से करती है कि पोजीशन जा किधर रही है। अब मैं बहुत बड़ा फंड लेके बैठा हूँ और मुझे कमाना है पैसा, तो ऑब्वियसली ना मुझे उन लोगों से पैसा कमाना है जो मेरे सामने अपोनेंट खड़े हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो भी हाथी हो सकता है, वो मैमथ हो सकता है, वो बहुत बड़ा डायनासोर भी हो सकता है, और वो रिटेलर्स का एक बहुत बड़ा झुंड हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मैं कब क्या करूंगा। मेरी तो सिचुएशन यही होगी कि अगर मैं कोई चीज बेचने जा रहा हूँ और अगर उस मुझे अच्छा भाव मिल जा रहा है तो मैं बेचता रहूंगा। अगर मुझे अच्छा भाव नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे, मतलब आज का दिन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ उदासी है। मुझे माहौल चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। ये मार्केट एक्चुअली बनती यहाँ से, प्रिपेयर ही यही से होती है कि बायर सेलर की मजबूरियां कहाँ से है, कि जिसको अगर माल उतारना है। अब माल अगर इतना कंटिन्यूअस हुआ है और अगर पीपल डिप्रेशन में जा चुके हैं इस कल तक के डेट में, तो फिर अगले हफ्ते में बिकवाली करने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बिकवाली करने में नुकसान है। मुझे बहुत सस्ते रेट में थमाना पड़ेगा, क्योंकि बायर नहीं है बाजार में। लोग हताश हो रहे हैं। लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि यार ये तो मार्केट ऊपर ही नहीं जा रही है, इतना दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया। तो ऐसे में पलटना जायज है, लेकिन एक नया हाई की उम्मीद करना थोड़ा गलत है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह का टेक्निकल है। मुझे देखो तो अगर 19,500 की कैलकुलेशन मैंने पिछले साल करी थी, बट यार वो पीक है। 19,500 का एक राउंड फिगर था, वो एक पीक हो सकता है। 19,500 प्लस माइनस हो सकता था कि 500 पॉइंट प्लस, 500 पॉइंट माइनस, क्योंकि कोई मार्केट को मैथ में कैलकुलेट नहीं किया कर सकता। एक राउंड फिगर में कैलकुलेशन होती है। और अगर वो कहते हैं कि अगर उसके तेजी के माहौल में ही अगर मैंने वार्निंग दी थी, तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा ना किसी को। ये आपके ऊपर है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं ट्रेड करने में। बट अगर आप एकदम कॉमन पीपल हैं, तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि भाई अगर इस साल आपको 50% मिल गया है तो निकल जाओ, क्योंकि 5% तो एफडी मिलता था, यहाँ 50% मिला। अब अगले साल का सोचो। मैं तो यही बोलूंगा ना। गलती तो यहाँ पे बिल्कुल। ये होती है, सर सबसे बड़ी जो गलती है कि हमारा कोई एम नहीं, एमलेस पीपल घूम रहे हैं मार्केट में। स्टॉक मार्केट में किस लिए सोच रहे हैं 2-3 हजार रुपये महीना एक्स्ट्रा बच जाए। ओके, तो क्या करना है इसके लिए? हमने पूछा कई लोगों से, तो बोले भाई 1 लाख रुपया डाल दो, 4-5 हजार रुपया महीने का बच जाता है। तो सोचते हैं कि चलो 4-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा आ जाएगा, उससे हमारा कुछ ये काम हो जाएगा। तो आते ही थोड़ा सा कुछ देखते हैं, कुछ ट्विटर पे देखते हैं, कुछ टेलीग्राम देखते हैं, कुछ इधर देखते हैं। फिर वो बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, लाइफ का फेलर ही बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है हमें, और एमलेस लाइफ है। हमें पता ही नहीं हम क्या करने आए हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जो कंसर्न है वो मार्केट का, मुझे समझ में नहीं आता। इट इज अ वेरी हाई रिस्की मार्केट यार। मतलब ये नॉन स्टॉप गिर जाए ना, मुझे कुछ सरप्राइज नहीं होगा। ये नॉन स्टॉप रोज गिरती चली जाए 15,000 तक ना, मुझे नहीं सरप्राइज होगा, क्योंकि मैंने देखा है यार इतिहास। मैं इतिहास के पन्ने में जा जाके झांक चुका हूँ कि क्या क्या हुआ है। कंटिन्यूअस एवरी रेड कैंडल मैंने देखी है जाके बनी है कि जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, जब वो खत्म हो गया उसके काफी लंबे अरसे बाद उसको नाम दिया गया कि ये ग्रेट डिप्रेशन था, क्योंकि अब हर मोड़ पे बायर मिला होगा। और हौले 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 एक तरफा एवरी रेड कैंडल कितने महीने तक कंटिन्यूअस रेड क्लोजिंग हुई है। तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है। तो मुझे मार्केट में आप कुछ भी एज्यूम करने को बोल दो, मैं कर सकता हूँ। आज मेरे को कुछ भी ऐसा दिख जाए अच्छा, तो मैं यही बोल दूंगा शायद 4-6 महीने में 50,000 चला जाएगा निफ्टी। भाई कुछ हो तो, ऐसा धमाका तो वो दिखे तो, वजह ही नहीं है कोई। हाँ, ऊपर जाना बड़ा आसान है, ये याद रखना। क्योंकि जो हाथियों का अरबों खरबों रुपया लगा है ना, उसकी वैल्यू, नोशनल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, कि उसका वैल्यू बड़ा हो गया। मेरे पास किसी भी कंपनी में 20% स्टॉक पड़ा हुआ है, और खाली 2% में मार्केट रेट खरीद खरीद के स्टॉक का रेट डबल कर दूं, तो मेरी तो अहमियत हो गई ना दुगनी से ज्यादा की।
लगाया क्या, थोड़ा सा पैसा मार्केट रेट खरीद के वैल्यू बढ़ा दी, जो कंटिन्यूअस काम करती है हाथी। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे बोलो कि साहब अगले हफ्ते भी माइनस हो जाएगा, अगले हफ्ते भी माइनस हो जाएगा और अगले 52 हफ्ते तक निगेटिव क्लोजिंग होगा, हो सकता है, पॉसिबल है। वही वही विपिन सर, मेरा वही पॉइंट था कि जो भी इंडिविजुअल इंडेक्सेस है, उसके जो लीडर्स है, एक एग्जांपल के तौर से मैं कह रहा हूँ कि एफएमसीजी में अपने एचयूएल को एक लीडर मान सकते हैं, राइट? तो एचयूएल अभी उस रेट पे पड़ा हुआ है सर कि जो जो लोग ये आप मेहमत की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू मे बी सेल एट दिस प्राइस एचयूएल को। तो एक लास्ट जो एक स्विंग है, वो स्विंग एक शायद से ऐसा हो सकता है सर कि ऊपर जाके एक साइकोलॉजिकल 20,000 का जो लेवल है उसको भी क्रॉस कर ले, एक 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 उम्मीद लोगों को बना दे कि हाँ भाई मार्केट तो नया साइकोलॉजिकल के ब्रेकआउट दे लिए दिया है। साइकोलॉजिकल के लिए तो एक दिन काफी होता है, सिर्फ एक दिन। अग्री सर, अग्री, कंटिन्यूअस वही मार्केट एक गिर दिन। रही थी, कंटिन्यूअस मार्केट गिर रही थी ना, नेगेटिव एकदम लोवेस्ट क्लोज हुआ है पिछले 12 हफ्ते का ऑफ कोर्स, लोवेस्ट क्लोज है, ठीक है। आप ऑफ कोर्स सिर्फ सर। कुछ मत करो, सिंगल डे लोवेस्ट वॉल्यूम पे कल 300 पॉइंट की रैली कर दे और उसके बाद आप लोगों को कॉशन करो, आपको थप्पड़ मार के चले जाएंगे। 100% सर, ठीक है, थप्पड़ 100% अग्री। मारेंगे साहब। ऐसा है कि जो लोगों का जो विचार बदलता है ना, वो जर्क से बदलता है, स्लो से नहीं, हमेशा जर्क से बदलता है। इसीलिए हम लोग जब बोलते हैं कि जो झटका का मार्केट है, झटका का, दैट इज जस्ट ए, वो ब्रेक है। जैसे ऊपर मार्केट जा रहा है, जो भी बुल मार्केट होगा देखना, जब जब बीच में गिरा होगा वो जर्क से गिरेगा, झटके से गिरेगा, एक मेहमान की तरह गिरा और वापस फिर चल देगा। वो सिर्फ लोगों का जो दिमाग में जो बन गया कंसेप्ट ना, उसको ब्रेक करने के लिए होता है। तो जब बियर मार्केट जब चल रही होगी तो ऐसे ही हौले हौले चलती रहेगी और बीच बीच में स्पाइक जोर जोर से हाई आएगा। 2008 के मोमेंट में जाके स्टडी करो कि इतना बड़ा क्रैश हुआ था, एंड आई मेड मनी विद इन ए वीक, 20%, 25%, 30% in a stock, multiple time, not in stock only, in Nifty, Bank Nifty also, 20% in 4 day, 5 day, 6 day, एंड ये बड़ा एग्जांपल हो गया। अब पीछे का चेक करो कि 16-17 दिसंबर 2021 को 16,800 का लो लगा था, आई थिंक, या 16,400 का लो लगा था, जब पहली बार 18,600 से मार्केट गिरा था। 15 जनवरी से 15 दिन में 18,350 था, 15 दिन के अंदर था, वायलेंट मूव था। उसके बाद क्या हुआ, नया लो लगा, पिटाई हुई, 16,805 दिन 5 ट्रेडिंग सेशन में आ गया। फिर क्या हुआ, पूरा का पूरा स्टार्ट याद है, 4% की रैली होती थी, 2% का करेक्शन, 4% की रैली हुई अप टू बजट के दिन तक। उसके बाद 15,600, क्योंकि बीच में पूरा का पूरा इनका रशिया और यूक्रेन का मैटर आ गया। फिर उसके बाद आप देखो 7 मार्च को लो लगा था, आई थिंक 15,600 का, 18,100 आया कितने ट्रेडिंग सेशन में, दिन के 7-8-10 ट्रेडिंग सेशन में वर्टिकल रैली हुई, बिल्कुल विपिन जी, 18,100 आया, बिल्कुल। सब तैयार होगा, 20,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, नहीं हाई लग रहा था, नया स्टॉक बढ़ रहा था। कौन लेके गया था, एचडीएफसी लेके गया था, रिलायंस और एचडीएफसी, अप्रैल और मई का जो टॉप लगा था 18,100। फिर क्या आया, वापस 15,700 मई में आ गया। फिर क्या हुआ, फिर घसीट के थोड़ा पुल बैक किया और जून में स्पाइक लो लगा 15,200 का। तो वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मार्केट कभी मत देखो कि लोगों को पलटने के लिए एक दिन का बस पैसा चाहिए होता है। एक दिन में 300 पॉइंट की रैली कर दूं, सब बिस्तर से खड़े हो जाएंगे, मुर्दे भी निकल के आ जाएंगे कि हाँ भाई फिर से चालू करते हैं। बिल्कुल सही बात है विपिन साहब आपकी, 100% अग्री विथ योर पॉइंट। जब मार्केट में काम करने का एक सिंपल सा एक तरीका है, बहुत सिंपल सा है भाई, एक समंदर है तो सारा पानी भर के लेके जाओगे घर, जितना पीना है, जितना पचा सकते हो उतना लेके जाओ, अपना एक एम बना लो तो हो जाएगा। अभी रिस्की मार्केट में खेलने का जरूरत ही क्या है,
तो गया 3,000 4,000 पॉइंट की रैली हुई जिसमें स्टॉक डबल से ज्यादा बढ़ गए। न जाने कितने स्टॉक 12 महीने में डबल हो गए। कहाँ होता है पैसा डबल? बहुत सही बात है विपिन साहब, बहुत सही बात है। तो one minute, Abhishek, there are two people who wanted to speak, Arjun Arora and Nitish Avantikar. Just find out where they are and if you can invite them, please. Yes. Yeah. And meantime, Vipin, there are a few questions to you. One is Harshil has asked, why are you bullish on Vodafone? Why are you bullish on Vodafone? सर आई थिंक इसको आप भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज ये नोटिस करनी चाहिए कि 150 करोड़ के देश को दो कंपनी नहीं चला सकती। कम्युनिकेशन जहाँ पे आज हम भी इस समय कम्युनिकेशन के थ्रू जुड़े हैं, वही मोबाइल फोन, वही वाईफाई, वही इंटरनेट, 3G 4G, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और अगर हमको लगता है कि खाली दो देश चला सकती, दो कंपनियां चला सकती है 150 करोड़ के देश को सप्लाई दे सकती है, तो इम्पॉसिबल है। और आज की डेट में अगर आप देखिए, सही सब म्यूट कर दीजिए क्योंकि आवाज बहुत गूंज रही है। अगर देखिए तो BSNL कहाँ का है पता नहीं, MTNL का क्या हाल है कुछ पता नहीं, TTML का क्या हाल है कुछ पता नहीं, मेरे कितने हैं दुनिया भर के टेलीकॉम जो आपके सेकंड लेवल के पे बैकअप करते हैं, जो एयरटेल या जियो को या आइडिया को सर्विस देते हैं, या कोई केबल नेटवर्क पे काम कर रहा है तो कोई किसी चीज पे काम कर रहा है, बाकी सब कितने हैं। आप देखें तो BSNL का भी कुछ पता नहीं है। कभी किसी जमाने में दिग्गज हुआ करता था, सबसे बड़ा दिग्गज है कि BSNL ही तो सही है, बाकी सब बेकार है। इस देश को 3 नहीं कम से कम 4 या 5 टेलीकॉम हो तो संभाल सकती हैं। और ये हमारा काम कम्युनिकेशन का बिजनेस कंटिन्यूअस हमेशा हाईएस्ट डिमांड में रहेगा। इसके बिना लोगों की सांस निकल जाती है कि साहब मोबाइल काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क चला गया, इंटरनेट चला गया, लोगों की सांस डाउन हो जाती है। ऑक्सीजन में तो मैनेज कर लेंगे लेकिन इसके बिना मैनेज नहीं कर पाते। अभी रिसेंटली इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो टैक्स का, पेंडिंग टैक्स का था, लेकिन उसको कन्वर्ट करके इक्विटी सरकार ने खुद लिया है। शायद $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरकार का खुद का इन्वेस्टमेंट हुआ है। आने वाले टाइम में जो सिचुएशन लगती है, क्योंकि यहाँ पर मेरी बात का लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि मैं कुछ सीधे सीधे किसी के ऊपर जिम्मेदारी ला दूंगा और वो हो सकता है कि लोग उनके उस बात पे नाराज हो, लेकिन मैं जवाब से वोडाफोन के लिए दे रहा हूँ। इसमें कहीं ना कहीं सीधे सीधे जिम्मेदारी जो आती है वो सरकार की आती है। सरकार ने इस बात को नहीं समझा कि हमें और जो भी दूसरी हमारी BSNL है, आइडिया, इन सब को एक एडवांटेज होना चाहिए ताकि चीजें मोनोपोली में न जाए, ड्यूलोपोली में न जाए। आज की डेट में हम ड्यूलोपोली जैसी सिचुएशन में है। ड्यूलोपोली उसको बोलते हैं जहां पर दो दिग्गज हो, सिंगल प्लेयर होता है। जैसे कभी किसी जमाने में माइक्रोसॉफ्ट होता था तो हम बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज मोनोपोली है, फिर लाइनेक्स है, एप्पल है, ये लोग आए और वो मोनोपोली खत्म हो गई। तो मोनोपोली किसी की न जनरेट हो या ड्यूलोपोली न किसी की बने, यहाँ पे सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है। और फेलर होने पर, क्योंकि कोई भी फेल हो सकता है, जैसे आज हम आइडिया को देख रहे हैं फेलर, कल को जियो भी फेलर हो गया तो फिर क्या होगा? या कम्युनिकेशन कोलैप्स हो जाएगा, पूरा का पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, न जाने कितने लोग बेरोजगार होंगे और कम्युनिकेशन कितना बदतर होगा। फिर न समझो क्या होगा, विदेशियों को बुलाओ, FDI ले आओ, FPI ले आओ, ये करो, हाँ, AT&T को बुलाओ, अमेरिकन कंपनियों को बुलाओ कि आए हमारा कम्युनिकेशन दुरुस्त हो। जब हमारे ऑलरेडी चल रहा था तो सबसे बड़ी जो गलती की गई थी कि कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर मार्केट में चल रहा है, मुझे बड़ा ही अनएथिकल प्रैक्टिस लगी थी जियो की कि जब बाजार में एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है सालों पुराना कम्युनिकेशन का, कोई एक कंपनी खैरात में कैसे बांट सकती है कि साहब हमसे मुफ्त में ले लो, 1.5 साल यूज करो, जब हमको मन करेगा तब हम पैसा लेंगे। ये बहुत ही चीप लेवल का बिजनेस एथिक था और इसको करने दिया गया।
ठीक है, करने दिया गया, इट्स ओके। जो भी बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उन्हीं के कारण हमारी वेल एस्टेब्लिश जो भी हमारी वोडाफोन कंपनी थी, और आइडिया तो अलग अलग थी उस जमाने में, बल्कि शुरू में, बाद में ये दोनों लोग मर्ज हुए। तो हमारे पास वैसे तो 5-6 कंपनियां थी, बट डूबते 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 फिर संभलते संभलते आज की डेट में 3 बची हैं, और बाकी 3.5 यूं बोल सकते हैं कि बीएसएनएल का भी कुछ पता नहीं है, वो भी डूब रही है, उसको भी कोई नहीं बचा रहा। बट फ्यूचर जो समझ में आता है कि मुझे ऐसा ऐसा ही लगता है कि ये बीएसएनएल, आइडिया और ये सब के मर्जर होने हैं। हो सकता है एक्स्ट्रा बाहर से टेक्नोलॉजी भी कोई आने की तैयारी में हो, कि कोई बहुत बड़ी कंपनी जैसे एटीएनटी है, या तमाम चीजें हैं, या कोलैबोरेशन होगा। इनका कुछ बर्बादी खत्म नहीं होना है, क्योंकि दे आर ए सर्विस प्रोवाइडर, दे आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, एंड दे आर डूइंग सेम प्रोडक्ट की। जैसे अब देखो तो ये बिग बाजार में आप जाओ, वहां पर भी आप शॉपिंग करते हो, तो फिर कल को डी मार्ट आ गया तो वो उनसे अच्छा परफॉर्म कर गया, तो फिर कल को ये दूसरे है तो स्विगी है, तो जोमेटो है। अभी अभी एक डिलीवरी की कंपनी है जेप्टो करके है, उसने 20 साल के 2 लड़के हैं जिन्होंने $200 मिलियन उठा लिए, जबकि दे आर बर्निंग मनी, दे आर कंटिन्यू बर्निंग मनी, नो प्रॉफिट कमिंग, बट वो 10 मिनट की डिलीवरी है। तो ये सब बिजनेस है, दुनिया भर के बिजनेस आ रहे हैं, खाने पीने का सामान है, एक के बाद एक चल रहा है, दे ऑल आर बर्निंग मनी। जोमेटो, स्विगी, उबेर, ओला, सब बर्निंग मनी चल रहा है। बट आप एक चीज सोचो, जोमेटो का बिजनेस मैंडेटरी है क्या, इसेंशियल है क्या? नहीं, खत्म हो सकता है। जोमेटो स्विगी का बिजनेस पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। वी आर द पीपल की हमें थोड़ी सी सामान खरीदने के लिए ना बाजार में जाना अच्छा लगता है, वो पड़ोस वाले से लेना अच्छा लगता है, हमारे मोहल्ले में है, ये है वो है। हमारा मैंडेटरी है कम्युनिकेशन, एंड दूसरा पेट्रोल, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई कहे कि बिना बिजली के देश चल सकता है, बिना कम्युनिकेशन के देश चल सकता है, बिना रोड के देश चल सकता है, तो ये पागलपन है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट रहना और इन्वेस्ट क्या करना, एक चीज हमेशा हम लोग बात करते हैं कि 5% से ज्यादा अपनी कैपिटल कभी किसी कंपनी में मत लगाओ। मतलब 20 स्टॉक तक, अप टू 20 स्टॉक तक आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, 5% से ज्यादा कभी मत लगाओ, कहीं भी कोई भगवान नहीं। तो अगर हम 5% आइडिया में लगा के बैठे हैं, तो क्या पता 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया वाला स्टॉक वापस 100, 150, 200 सब हो जाए, क्योंकि ऐसा इतिहास में बहुत हुआ है। अगर रिसेंटली देखें तो टीटीएमएल 1.5 रुपए का था, और पता नहीं कौन सी खैरात से 300 रुपया चला गया एक ही साल में, किस बिहार पे गया था आई डोंट नो। बट ये जो चलेगा, ये खड़ा होगा, इसमें पूरा फंडामेंटल पावर है। और कहीं ऐसा ना उल्टा हो जाए कि सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी आने वाले भविष्य की यही है, वोडाफोन आइडिया। क्योंकि जितना स्ट्रगल इन्होंने करना था ना, ये कर चुके हैं। इन्होंने सबसे बुरा देखा है, सबसे बुरा, और उसमें ये सरवाइव करके निकले। ये नहीं किसी को ध्यान दिख रहा है कि वो मिट नहीं रहा है, वो बर्निंग हो रही है उसके कैपिटल की, लेकिन दे आर नॉट कि यहाँ सब खत्म हो रहा है। दे आर सबसे बुरे वक्त से गुजरने के बाद भी जो खड़ा होगा, उससे अच्छा आइडिया, प्लानिंग, बिजनेस किसी के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में शायद वोडाफोन आइडिया ये सब खत्म कर दे। जियो जैसी कंपनी जिसका कोई एथिक ही नहीं था बिजनेस का, जिसने खैरात में बांट के, न कि क्वालिटी प्रोडक्शन के नाम पे उतरी होती बाजार में, और कहते कि हाँ मेरा ये सामान है, ये दाम है, खरीदने का दाम है तो खरीदो। अगर क्वालिटी की बात देखें, एथिक की बात देखें, तो एयरटेल, एसआर, जब एक जमाने में 1995 की बात चली, जब हम 12 रुपया, 15 रुपया हमने अपने हाथ से पे किया 1-1 मिनट की कॉल के लिए, प्लस एयर टाइम 1 रुपया 20 पैसा पर 3 मिनट का हम बीएसएनएल को पे करते थे। अब 12 से 13 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया आउटगोइंग पे करते थे। जब उषा नाम की भी एक कंपनी हुआ करती थी यूपी में, एल्काटेल, एल्काटेल या एस्काटेल करके थी एक यहाँ वेस्ट यूपी में। तो उस जमाने में इन लोगों ने क्वालिटी से नहीं कॉम्प्रोमाइज किया था। ये नहीं बोला था खैरात में बांट रहे हैं, नया चीज आया है बाजार में, ये करो। बट जिस तरीके से ये खड़े हुए हैं, इनके अंदर वो दम नहीं है। इन्होंने पैसा बांट के खड़ा किया बिजनेस। कल को जियो की पूरी साइकिल ही खराब हो जाए, और जैसे अनिल अंबानी का बिजनेस खत्म हुआ था, वैसे ही मुकेश अंबानी का जियो बिजनेस खत्म हो जाए, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है।
इस बात की प्रोबेबिलिटी, अगर आज की डेट में मुझसे, मतलब मेरा कॉमन सेंस ये कहता है, मैं बिजनेसमैन खानदान से हूँ, अपनी माइंड बिजनेस खोपड़ी से चलता हूँ, मुझे 99% प्रोबेबिलिटी लगती है कि कल को ये भी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी ये भी खत्म हो सकती है, डेफिनेटली खत्म हो सकती है। लेकिन ये लोग जो दिग्गज हैं, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, इन्हें पता ही नहीं क्या करना है। बस सर। Okay, Vipin, I'll just answer a few questions which people have asked. One is BNF has asked Nifty EP is at 800 levels now. What if earnings increase in coming years? As I said before, BNF, I saying India is in a bull market overall. For the last 30 years, we have been in a bull market. But it doesn't mean that we will not have, severe downtrends. We've had many severe downtrends. We had in 92, 93, we had in 2000, 2002, we had in 2008, we had in 2010, 11, we've had in 2013, we've had 15, 16, 20, 18, so even 22. So we will have these kind of significant downtrend. See, the point is like this. If you are not able to, manage your portfolio in your downtrend, that is when you will be thrown out of the market. Otherwise, typically, if you look at any retailer, they're all bullish. They are not bearish per se. But if you see every 4 years, a new set of investors come into the market. Why do you think? That is simply because the people who are bullish, they keep increasing their, exposure as the market goes up. Actually, one should be doing the other way. That is, you should reduce your exposure when the market goes up. See, this personally, I've learned it through the hard way. But somehow, with God's grace, I've survived these 32 years. But this is exactly what I've seen. I used to run a broking firm. We had about 30,000 clients spread across 3 cities. And typically, every 4 years, people used to get thrown out of the market. And even now, I believe the same situation will happen. Now, when you are making money, and when you make more money than what is normal, then you should scale down your exposure. But that doesn't happen that way. It invariably increases because that's what human nature is. But that's what markets are. The markets will punish you very severely. So therefore, Nifty EPS at 800, it will go to 1000 or it will go to 1200. But that may happen much later. What if from 800 it comes down to 750 or 775 or it remains at 800 for quite some time? Then you see what will happen is the prices will stagnate or start coming down. So do not expect that, the price that EPS will only increase. It is not necessary. There could be years, like I gave you some examples, where the EPS will be stagnant or be down. At that point of time, you will see prices down. And also, EPS and PE, though price earning is part of, EPS is part of price earning, it is not necessary that every time you have the same PE. For instance, at peak market, you will have PE of 28 to 30, like you had in October 21. But then between October 21 and June 2022, actually the earnings increased by 27%. They increased. But at the peak came down because and the prices came down simply because people were not willing to believe that it is a bull market or the bullish phase. So the first phase of bullishness, people lost out. People did not participate, even though the PE was lower than 28. And even though the earnings were increasing. One of the highest earnings increase in the past many years has happened in that period between October 21 to June 22. 27% increase in the earnings per share. So you cannot simply say just because EPS is some X amount, EPS will go up, yes, surely, that the prices should go up. It is not necessary because the PE can come down. So you need to be very careful, especially at market euphoria, which Vipin also has mentioned as to what kind of market he believes it is. And I have also given examples. To just add more information, see yesterday, I think there was one, session on CNBC where Anuj Singhal talked about the options market. The way options market is increased and the exposure of retail investors has increased, it is unimaginable. Now, this has to end with a bust. There is no way it can escape. See, previously, Badla used to be there in 90s. It ended with a bust because, they took huge positions in 1992. It happened in 95. It happened in 99. After that, Badla was removed. And then, we had the futures and options. Huge futures positions were built in 2007-8. So now you've got extraordinarily
high options positions built, highest in the world by far. You just have a look at the 20-minute, discussion which they have. I mean, it is really eye-popping. This has to end somewhere, and it will end badly. That I have no doubt, because the market spits and throws out traders every 4 years. Like somebody was talking about leap year, there is a crash. Every 4 or 5 years, newer traders come. So our idea of doing this space, our idea of doing a clubhouse session similarly tomorrow, is to help people to understand that things are not all rosy. Be careful. The market may spit, the market will spit and throw out the inefficient or the greedy traders. Let us not be in that camp. That is the the focus on whatever when we say. So when Vipin talks about some numbers, people mock him and make fun of him and all that. Those guys will be the first guys to go out of the market. You take it from me. First of all, they will not be trading. Second is, even if they're trading, they will be out. Those handles will not be there in next 6 months. That I'm very sure. Okay, now I'll answer a few other questions before Vipin will answer some. Somebody asked for the clubhouse link. I'll have to put it only tomorrow. So Kashyap, I'll send it to tomorrow. On China deflation, yes, China deflation is something which is surprising, which will create havoc across the global spectrum. It's just a matter of time. Abhishek, I think TS wants to ask a question. Just exactly. Yeah. Guru asks about. Guru says in leap years there's a crash. That is not always true, Guru. What is crash? See, if you're talking of 1992, 2000, 2018, okay, those were major crashes. But there were also crashes in 1997, 1999, 2003, 2006. In 1 month, it fell 35%, the Nifty. That was a significant crash. Or 2010-11, where Nifty fell between 6,300 to 4,500, there was 30% crash. 2013, there was a big fall. 2018, for instance, the mid-cap and small-cap never recovered up till 2020. So it's not always that, in a leap year, that there will be a crash or something like that. Markets have their own cycles. I believe strongly, instead of years, it is a question of the greed and fear cycle. Now we are at peak greed, in my opinion, because as I told you, the peak greed is exemplified by the open interest or the volumes in the options market. And people who are trading in the options market, believe me, do not understand what they're trading. Because I've been trading in the options market since 2001. I know how difficult it is to make money and sustain, even if you make money, to sustain, with the profits. So, and when I hear people talking of, hero or zero, those kind of trades, I feel a little sad, and they will go out of the market. That is the nature of the market. So, greed cycle is highest now. So, therefore, I expect a significant drop down, whether it is 23, who knows, it may significantly drop down in the next 6 months, which is still in 2023 and not a leap year. So just we need to be a little bit, careful about putting a number, like saying 2024 it will crash, so I'll enjoy in 2023. It doesn't work like that. It does not work like that in the past, because I've lived through this since 1991, and Vipin has lived since 2003. So we both understand that. Vipin, one question is there for you on Adani after SEBI report. Before that, let me just, Jayadev asked about any dark horse. I can only speak for myself. I've invested only in pharma, and I'm fully invested in the markets all the time, whether it's bull, bear. But the trick is to identify stocks which will manage during a bearish phase. Like in 21, I was fully invested in ITC and S-Bank. Yeah, even though 2022 was bearish, both of them survived and grew actually. So it all depends on what stocks you want to invest and what's your time horizon. My time horizon is till December 2025. So I am happy to buy into pharma stocks. So King asked about right time to invest. As I said, there was a great saint called Purandaradasa in Karnataka. I'm from Karnataka. So he used to say every day is a good day. So in markets also, every day is a good day to invest, but you will have to pick and choose. In a bull market, you'll get a lot of stocks to pick and choose. In a bear market, you'll get in the ending stages of a bull market, you'll get very few stocks to pick and choose. So just be careful on that. The other one is pharma. Somebody may ask. So I'm telling you, pharma is the sector which I strongly believe. So I have invested. Before I push to Vipin on the Adani, the BRICS and de-dollarization. See, you must understand BRICS is now not yet talking of a currency.
common currency is extremely difficult. You see, the euro is a common currency. It took about 12 years for them to start and actually get the euro. So if you go back and look at history of euro, it took a huge amount of time, 12 years. So it is not so easy. And believe me, euro is Europe. And all of those are contiguous countries. They're just like a one continent. It is a continent, of course, but it is much more, homogeneous. Whereas BRICS are not homogeneous. You've got South Africa, you've got China, you've got India, you've got so many other countries now coming in. It's very difficult to agree on some currency so easily. And incidentally, euro is fully convertible, dollar is fully convertible, but Chinese currency is not fully convertible. Indian currency is not fully convertible. So you have a problem on convertibility. If a currency is not convertible, then how will you get a common currency? So there are many, many issues. These are some of the issues I've raised. So it's very nice, very happy to talk about de-dollarization. De-dollarization is not going to happen so easily. Let's not kid ourselves that, because we contribute much part of the global population that we can come out with the currency. It is just not. In India itself, we've got 31 states, 30 plus states, and we are not homogeneous. So forget about, these 10 countries of BRICS, which is trying to have homogeneity. That is going to take a huge amount of time, effort, and they're not even talking about it right now. Dollar will remain the king for a long time to come because dollar is accepted after a very long time. It is not that dollar was global currency. It has become global currency after 1945. The dollar has been there for more than 150 years before that. So it will take time. So let's not go there. And there is no use of discussing it right now because it does not help us in making any investment decisions. So the question to you, Vipin, is about what do you feel about Adani after the SEBI report? पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेबी की रिपोर्ट पे आपको क्या लगता है? See, I have a strong feeling that the most important, they said out of 24 issues, they have sorted out 22 and they have not sorted out the 2. I feel the 2 which they have not sorted out are the most important issues. That is where the crux of the matter is. And comfortably what SEBI has done, this is my suspicion because I have not seen the report, but knowing how SEBI reacts, how SEBI acts or any institution acts, so they will give number. So we have done so much work. We have done 22 issues we have sorted out. The 2 will be the biggest ones and the 2 will be the ones which will hurt Adani, which I don't think they will sort it out. Unless Supreme Court goes behind them and beats them with a stick, I don't think they will sort it out so easily. That's my judgment. Knowing SEBI, this is what my impression is. Right now, they have not told us which are the 2 issues which they have not sorted out. So, Vipin bhai, you can just put your views. I'll answer some more questions of others after that. Yes, sir. Sir, जहाँ तक लोगों को याद होगा, आपको भी याद होगा कि 5-7-8 महीना पहले जब इनकी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, तो उससे पहले थोड़ा कॉशन मोड तो हम लोग आ ही गए थे. बट जब ये रिपोर्ट आई थी तो हमने एक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने वो स्पेशली वैसे बोला था कि ये जो भी कुछ इनके खिलाफ पूरा का पूरा जो जखीरा खोल के बैठा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इनके प्राइस में, वो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्ट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह के एक्टिविटीज हमने नहीं देखी है इसके पहले. हमने इसी तरह की एक्टिविटीज हमने देखी थी 2003 से लेके जो बुल मार्केट चली थी 2007 तक. उसमें इंडिया बुल ग्रुप को हमने ऐसा ही देखा था. वो करता क्या था कि एक बिजनेस उसका खड़ा हुआ, बूम चल रहा था, उसको कहाँ से बैकअप मिल रहा था वी हैव नो आइडिया, बट जो भी अपनी इक्विटी होती थी वो उठा के प्लेस करता था. फिर दूसरा बिजनेस, फिर तीसरा बिजनेस है, चौथा बिजनेस, और फिर उसको प्लेस करके फिर उसने एक पूरा का पूरा मतलब जो प्रॉपर्टी भी है जितनी है उसको उठा के प्लेस करता है, अपनी इक्विटी उठा के प्लेस करता है, और फिर एक बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करता चला गया. एग्जैक्टली इन्होंने भी कुछ वैसा ही किया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा किया. हो सकता है, हमें इंडिया बुल का भी पूरा खुलासा नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके बाद इंडिया बुल का क्या हुआ सबको आइडिया है. जो लोग पुराने हैं इंडिया बुल ग्रुप के बारे में जो भी आइडिया है,
इनका जो भी एक्टिविटी था, जैसा भी था, वो काफी डिस्कस कर चुके थे हम लोग बहुत पहले ही, कि एक जो भी हम नोटिस करते हैं कि किसी का रिएक्शन कैसा होता है, उससे पता चलता है कि क्या सेफ है कि नहीं, क्योंकि हम ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, हमें इससे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। हम वी आर नॉट सेवी, वी आर नॉट सुप्रीम कोर्ट, वी आर नॉट मिनिस्ट्री कि हम जज करते फिरें कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। हमें चार पैसे कमाने से मतलब है। तो सैकड़ों कंपनियां हैं जहां पर साफ सुथरा माहौल है, अच्छा है, ग्रोथ है नहीं है, जो भी है जैसा है। थोड़ा वैसी चीजों की तरफ हम अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं? हम वहां क्यों अट्रैक्ट होते हैं जहां पर अनसर्टेनिटी हद से ज्यादा है? और ये मैंने देखा है रिटेलर को हद से ज्यादा उसी तरफ अट्रैक्ट होते हुए कि जहां पर अनसर्टेनिटी है हद से ज्यादा। अगर आपको याद होगा कि जब यस बैंक का भांडा फूट रहा था और फटाफट गिरावट हो रही थी, ऐसा नहीं था कि वो 400 रुपए वाला स्टॉक 4 रुपए 2 रुपए का जो भी लो लगा वो एक दिन की कहानी थी। तो बीच बीच में सपोर्ट लेता था, फिर जंप करता था, फिर गिरता था, फिर जंप करता था। वहां पर पागलपन था, एकदम पागलपन था कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है। या जब पीएनबी की पिटाई हो रही थी 2018 में, 200-250 रुपया का हाई था, लास्ट पुल बैक 2017 दिवाली के आसपास का 250 रुपए का रेट लगा था ऑन द रिकैपिटलाइजेशन न्यूज। दैट वाज द जस्ट बुलशिट फकिंग न्यूज। तो उसके बाद जो सेल ऑफ हुआ और उसके बाद जब एक एक मेल की फलाना टिकाना का डिस्क्लोजर हुआ, वहां पर जब पिटाई शुरू हुई, वहां पर भी पब्लिक को मैंने यही देखा कि 100 रुपया आ गया है, बहुत बढ़िया भाव मिल रहा है, 50 रुपया आ गया, अरे अब तो बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। क्यों अट्रैक्ट होना ही क्यों है? हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं क्या ऐसा कोई काम कि जो आदमी जिससे हमारी दोस्ती यारी है, अगर हमको उसके कैरेक्टर में कुछ भी गड़बड़ लगता है हम भाग जाते हैं, हम हट जाते हैं? भैया बहुत लोग हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े हो? उनके पीछे दुनिया भर के लोग आके सपोर्ट करो, ये हिंदुस्तान का विदेशियों की चाल है, क्या बकवास है। बीएचईएल 12-14 साल तक गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, उसमें किस विदेशी की चाल थी? बीएसएनएल विलुप्त हो गया, 7-8 साल तक 10 साल तक रिलायंस गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। 2007 के हाई से लेकर 2017 में उसकी रिसाइकिल शुरू हुई तो विदेशियों का हाथ था। जहां पर भी कोई समस्या है तो पिकवाली कोई भी करेगा, जिसका पैसा लगा है सब यहाँ बनिए की तरह बैठे हुए हैं। तो जहां पर भी उठ पटांग चीजें चले उससे एकदम दूर रहिए, जितना दूर रहिए मतलब उसका नाम लेना भी पाप है। जहां पर दुनिया भर का जांच चल रही हो, कुछ पता नहीं है, जिसके पीछे पड़ गया हो, मान लेते हैं, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि उसके पीछे विदेशी पड़ गए, तो तुम क्या कर लोगे भाई? तुम छोड़ो ना, उनको निपटने दो। आपका जो प्रॉफिट लॉस हुआ, लेकिन निकलो। उसमें क्या करना है किसको पता? खुद अदानी जी को नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो हम लोग क्या अंदाजा लगाएं? जहां पे अगर किसी के शांत महकमे में किसी के लंका में आग लग चुकी है तो क्या जलेगा क्या बचेगा कौन जानता है? तो मेरे ख्याल से अदानी छोड़िए, आने वाले 1000 साल तक जब तक आपकी सोच आप दोबारा जन्म लेते रहे और स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते रहे, मेरी एक बात याद रखिएगा कि जहां पर भी किसी भी किस्म की भसड़ शुरू हो जाए उससे तुरंत निकल जाइए। हजारों कंपनियां हैं, आप खुद 2% 4% बढ़ जाता है, जरा सा नौटंकी होती है आप निकल जाते हो, ऐसे बेचते हो, आप दिन भर ट्रेडिंग करते हो। तो जहां पर खुद सरकारें परेशान हो, कंपनियां परेशान है, सेबी परेशान है, विदेश के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, वहां पर हमें कौन सा रिश्ता नाता रखना, हमें क्यों सरदर्दी पालनी? तो मेरे ख्याल से अदानी से जुड़े जितने भी कंपनियां हैं उनके ग्रुप की हैं या उनके बहुत प्रिय हैं, सिर्फ आपको उन सब से दूर रहना चाहिए। इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक और सलाह, कि आपको बहुत ही शांति से हर भाषा से दूर रहना चाहिए। शांति से आप अपना काम कमाइए, 2, 4, 10, 5, 20% कमाने आए हैं, इन पे विचार विमर्श करना बंद करिए। दैट्स ऑल। Yeah, I think maybe TS could contribute to the discussion.
TS, you wanted to speak now? Hey, good evening, all. Hope you are all doing fine. Hi, Abhishek. I know him personally. Thanks for allowing me to speak. Hi. Yes. Yeah. We've been recently have been following your timelines, and I think last session I heard you, Sainik. I don't know your real name, but you sounds very experienced and interesting few My name terms. is And Vijay. I put it in my biodata, sir. I put it in my bio profile. My name is Vijay. Okay. Hi, Vijay. I heard about, just I want to add few points, what we've been told on telecom and all. There is a stock called Bharti Airtel. The market cap of telecom, Bharti Airtel is 5 lakh crores. And the PE is around 60-65. And to my surprise, I don't know what people are seeing and all. It has a debt, of 2.2 lakh crores, which is much bigger than many bigger companies, and the yearly earning is around 10,000 crores. That means the profit what it is generating, and the debt what the company is having is 20 times, and the PE is 60. If you look at absolute basic, what is PE? 60 PE means my investment, if I put 1 lakh in Bharti, it will take 60 years to come back to me. That is called PE, 60 PE. And I have never seen any telecom company, I mean Verizon you take, or any other companies in globally also, no such PE of 60. And upcoming interest rate cycle, the interest rates keeps on, or home loan, personal loan interest rates are going up, and you have a debt of 2.2 lakh crores, and your earnings is 10,000 crores. And forget about all this. Last 10 years, it has generated a profit CAGR of 5%. It means even my post office mein dal diya, I would have beaten Bharti Airtel stock. And you name any news channel or any newspaper and all, they go gung-ho on Bharti Airtel. And recently I've seen an interview of Sunil Metal. He's so arrogant because there are only two companies, मैं हूँ और मेरा भाई Ambani. That's all. I will increase my ARPU to 300, 200 to 300. That means 35% more. If he does also, it will take a debt-free company for a Bharti, which is a capital-heavy industry. Because telecom is such a capital-intensive industry, every 2-3 years you need to upgrade your towers and make 5G to 6G and all. It is huge. As you rightly said, that will become a Reliance Communications, and there is no doubt about it. Hope I am audible. Yes, dear. Yeah, you're audible. Yes. And second, it brings out to me, you spoke about Adani Vipin. So I'm, bit less in Hindi, but what I understood, simply if anyone wants to invest or give, 50,000 rupees, 1 lakh rupees, okay, if I want to give hand loan to anyone, I will just see that banda sahi hai. I mean, whether he is a good man or not, whether he will give back my money, okay, are he taking any loans from anyone else, so that my money I will get back or not. This guy is having companies, Adani Power and all, debt to equity of 20. Means if I have a earning or not even equity is also public listed, of 1 rupee, I'm having 20 times I have to pay back to the banks or institutions and all. And still that stocks are quoting at 200 PE, 300 PE. And you want to fund that guy, and you want to buy that shares because it has fallen from 4,000 to 2,000. I don't know, this last 2 years, many of even my friends, relatives, if I am telling them to exit 10% profit book kar lo, they are thinking that I am stopping their profits. This is the scenario. Last 2-3 years, lot of minds have been corrupted, saying that India will grow. And this has lot to do with the Fed also. They have also done the same thing, and even our government is also pushing our money with the help of EPFO, NPS, you name it. They're investing left, right, center in the index funds, and there is a bubble going on. Pump and dump is going on like anything from the government side itself. This is what I wanted to add. Thanks for allowing.
Vipin, there's few more questions to you. Ritesh asks about PSU banks, and Sid asks about public sector enterprises view. Your views on that? Kindly share that views, please. PSUs, banks, and the public sector enterprises. सर पीएसयू बैंक में एक मेजर रेस हुआ है. मैं ये नहीं कहता कि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी या ये कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. ये ऐसा कुछ नहीं है. जो प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर सफर कर रहा है ओवरऑल, वो सबको एक जैसा ही मिला जुला आएगा. थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि क्या ये जो रेस हुई है ये इनके टाइम के हिसाब से एडजस्ट हुई है. तो करंटली इन्होंने कहते हैं कि मतलब औकात से ज्यादा का रेस कर चुके हैं. इनको जाना बहुत ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है. कि अगर इन्होंने कोई गलती नहीं करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इफ दे विल डू कंटिन्यू गुड वर्क then it will grow much higher. But now दो बात यहाँ पे important है कि if they do again mistake, और यहाँ पर जो इतना ह्यूज प्रॉफिट बैठा है, जो उन्होंने अगले 2 साल की ग्रोथ को डिस्काउंट कर दिया है या 3 साल की ग्रोथ को डिस्काउंट कर दिया है, तो अब वो यहाँ क्या करेंगे? तो वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है अप टू 50% तक हो जाए टोटल गेन का. इट्स नॉट कि प्राइस का सीधे. अगर अप टू 50% इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई 30 रुपया का, जैसे पीएनबी था जो हमारा फेवरेट स्टॉक, हम लोगों ने 28-29-30 में खरीदा था और 60 के ऊपर इसको निकाला. तो अगर इसको हम ऐसे देखें तो इसमें 60 रुपया अगर 30 से 60 गया है तो 50% प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये होता है कि जो टोटल गेन हुआ था 30 रुपया, उसका 50% होता है 15 रुपया. तो अगर 60 से 45 और आने वाले समय में 40, 45, 50 2-3 साल तक रह गया तो दे विल डेफिनेटली लूज. तो मुझे ये लगता है कि पीएसयू बैंक में भी जो पीक लगी है ये लग चुकी है. एक्चुअली इनकी पीक सर लग गई थी दिसंबर 2022 में. अब देखिए तो उसके बाद जो करेक्शन हुआ था और उसके बाद जो वहां से रिकवरी हुई, तो वो ऑलमोस्ट सब वही घूम रहे हैं. कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ खास कमाल किया है. सिर्फ डबल टॉप जैसा माहौल है. और अब आगे यहाँ से इनको 2-3 साल तक कंसोलिडेट करने की जरूरत है. इनको जस्ट दिखाना है कि हाँ ये परफॉर्म कर सकते हैं. चलता सब कुछ ऐसे ही है. ऐसा नहीं होता है कि बस कोई चीज फ्लो में पकड़ लिया तो फिर वो चलता ही चला जाएगा. क्योंकि जहां पे चलता चला जाता है ना, वहां पे और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. और इसी बात का विटनेस यही पीएसयू बैंक है. 2008 के क्रैश के बाद जब ये रैली किए थे तो इन्होंने अंधाधुंध रैली की थी 2010 के दिवाली तक. अंधाधुंध रैली की 17-18 महीने में, मतलब उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा. और उसका नतीजा था कि एग्जैक्ट 2010 के दिवाली से लेके 2020 के मार्च में जाके इनका लोन 10 साल तक बेरिस थे. कोई 2008 का लो तोड़ा तो कोई गायब ही हो गया, कोई सब मर्ज हो गए, तो ये हो गया वो हो गया. तो अगर वैसा कुछ हो गया तो ज्यादा बुरा होगा. और ऐसा नहीं होना है, इतना ज्यादा बुरा अब नहीं होना है. जो बुरा से बुरा हम देख चुके हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन कंपनियों में. बट एक मोटी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो स्टॉक कम से कम 50% रिट्रेस कर सकते हैं बड़ी हालत में. जी सर. Yeah, there are two more questions. One is UE is asking, can you help me build a portfolio for 7 to 10 years? Not in exactly number of stocks or particular stocks, but what should be the portfolio? How should you go about? Should you do SIP or wait for the market to fall down? And then the second one question is, what is your expectation on gold and crude for the next 2 years? विपिन सर, एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन था, इफ यू अलाउ. हाँ प्लीज. अभी एक सैनिक सर ने क्या बोला था, मैं वो जरा सा सुनना चाह रहा था. जी सैनिक सर. Yeah, I will repeat again. See, he wants to know, UV, he wants to build a portfolio for 7 to 10 years. So he's saying, shall I do SIP now or shall I wait for, the fall? You are saying there will be a fall. So shall I wait that time or shall I continue with my SIP? The second question he asks is,
what is your opinion on gold and crude for the next 1 or 2 years? ओके ओके सर, एसआईपी करना और मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में करते हैं तो ऑब्वियसली कि हम बेस्ट वैल्यू का ही वेट करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हम 5% से ज्यादा किसी कंपनी में लगा नहीं सकते क्योंकि मुझसे बड़ा रिस्क हम नहीं झेल सकते। तो हम बेस्ट से बेस्ट वैल्यू में हो सकता है कि 3% एकदम से लगा दे या 5% पूरा लगा दे। लेकिन एसआईपी का मेंटेलिटी तो एकदम अपोजिट है कि मुझे पता ही नहीं है कि बेस्ट वैल्यू क्या होती है और हाईएस्ट एक्सपेंसिव रेट क्या होता है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो एक्चुअली एसआईपी पे के कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो दुनिया भर के आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे समझने के लिए। कि अगर आप एसआईपी करने का मतलब सिंपल सा है कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट। यू डोंट नो कि कब महंगा है कब सस्ता है। बस यू वांट कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करते रहना है। अब आप देखो तो जैसे अभी आप निफ्टी का देखो तो 18-19 महीने की साइकिल है। मैंने सैनिक सर मैंने डॉलर में निफ्टी का चार्ट शेयर किया था और आप एक बार उसको दोबारा से देख लीजिएगा। एग्जैक्टली 20 मंथ मतलब कभी 19 कभी 21 एग्जैक्टली 20 मंथ की साइकिल चल रही है बुल मार्केट की। डॉलर में रुपीज में घालमेल कर जा रहा है। तो अप्रिशिएट होके नया हाई या लोअर हाई या वैसा हाई लो बना दे रहा है। बट डॉलर में 20 मंथ से ऊपर चल ही नहीं रहा है मार्केट जब से 2008 का क्रैश हुआ है। जहां से मेच्योरिटी एक तरह से कहें कि मेच्योरिटी आई है एक स्टेबिलिटी आई है हमारी कुछ एक स्टेटस आया है हमारा मार्केट में। तो अगर आप एसआईपी देखें तो फिर एसआईपी का एक बेसिक सा तरीका तो यही होता है ना कि आप छोटे से छोटे अमाउंट मल्टीपल उसमें चलाते रहिए। और जब भी कभी आप देखें कि बहुत हाई हाई बातें हो रही हैं मार्केट भी खूब हाई है तो अब आप निकालना भी शुरू कर दीजिए। तो आप 2-3 टुकड़ों में एक बार विड्रॉ करिए एंड मेक एफडी। तभी आप पैसा बना सकते हो। अदरवाइज आप जिंदगी भर आप पैसे डालते रहो निकाल उसमें डालते रहो। जरूरी नहीं जिस दिन आपकी जरूरत हो उस दिन वो मार्केट की किस जगह पे किस सिचुएशन में बैठी है। तो जब भी आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है उस दिन एफडी ऐसी होती है जो अपने भाव से ऊपर मिलती है चाहे वो 1 महीने बाद भी आप निकालने जाओ। लेकिन स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि आप किसी स्टॉक में किसी इंडेक्स में किसी ईटीएफ में या किसी म्यूचुअल फंड में आप मंथली निकाल डाल रहे हो और आप जब आपको सच में जरूरत पड़ी तो पता चला कि अपने 52 वीक हाई से अपने एटीएस से स्टॉक ही आधा रेट पे पड़ा हुआ है जिस दिन आपकी जरूरत थी। तो उसको आपको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। उसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं जस्टिफाई कर सकते। बट हाँ अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और उसमें कुछ गलत हुआ है तो हम लोग जरूर यहाँ पे एक स्पेस में हेल्प कर सकते हैं। जी सर। Okay. Yeah, I think that's all the questions were. For somebody wanted to do an out of the box question, somebody wanted to ask. After that, I will answer a couple of questions and close it. पार्थ प्लीज। हाँ जी विपिन सर, मेरा एक क्वेश्चन सर ये था आपसे कि अभी तक अपने सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं सर। देयर इज मल्टीपल डिफरेंट मार्केट्स जैसे कमोडिटी मार्केट है। तो सर एज इट्स इंटरनेशनल मार्केट जिसमें मैनिपुलेशन कम हो सकता है, तो कांट वी टेक कमोडिटी सीरियसली इंस्टेड ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट? पहला कंफ्यूजन तो ये है कि कमोडिटी में मैनिपुलेशन कमोडिटी का मैनिपुलेशन ना अलग लेवल का है। वहां पे छिछोरे लेवल का मैनिपुलेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है आप हो सकता है कि रिलायंस टाटा जैसी कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग लोगों की चालू हो जाए या हाथी ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन गोल्ड क्रूड कॉपर जितना भी कमोडिटी है जितना भी है स्टैंडर्ड ये इंटरनेशनली सिंक होते हैं। कितना सेकंड लेवल पे अगले सेकंड में अगर एकदम से 1% गोल्ड जंप किया अमेरिका तो पूरे वर्ल्ड का गोल्ड अप्रिशिएट किया 1% पूरे वर्ल्ड में। बट वहां जो मैनिपुलेशन है वो अलग है। वहां पर भी मैनिपुलेशन है बट वहां पर मैनिपुलेशन कंट्री करती है।
देश बैठ के करता है। अभी जैसे चाइना परेशान है, वो चाहता है कि सस्ती से सस्ती कमोडिटी हो जाए ताकि उसकी कॉस्टिंग। ऑस्ट्रेलिया क्या चाह रहा है, वो कंटिन्यू मैनिपुलेशन में लगा है कि ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी का रेट रहे ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले क्योंकि मैं सबसे बड़ा सप्लायर हूँ। हाँ, कंट्री लेवल का मैनिपुलेशन चलता है। बट हाँ, जो आपने ये कहा कि ईटीएफ का यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, तो यहाँ ईटीएफ ऑब्वियसली अच्छा लगता है मुझे। गोल्ड का ईटीएफ है, कॉपर का ईटीएफ है, ये सब सुपर डिमांड के मटेरियल है। क्रूड का ईटीएफ बहुत कंफ्यूजन है, तो इसमें आप नहीं चल सकते। बट गोल्ड और कॉपर, ये दो चीजों के ईटीएफ जरूर एसआईपी की तरह ट्रेड किए जा सकते हैं। ये अच्छा प्लान होता है। Vipin bhai, you didn't answer this question about gold and crude. What is your opinion for the next 2 years? सर, मैंने 2-3 बार चार्ट डाला हुआ है कंटिन्यूस। गोल्ड में मैं बहुत गंदे तरीके से बेरिश हूँ। आप देखें ना कि इतनी इन्फ्लेशन के बाद, इतना फियर, इतना अनसर्टेनिटी के बावजूद $2050 के ऊपर टिका नहीं। ट्रिपल हिटिंग करने के बाद भी वो के 1900 तोड़ दिया नीचे में। तो इट क्लियरली कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, जो डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है कंटिन्यूस, तो डॉलर के टर्म में तो गोल्ड खराब से खराब लग रहा है, खराब से खराब लग रहा है। पता नहीं कितना तक, कब तक लंबा तक घसीटता रहेगा। जब तक डॉलर को स्ट्रेंथ बना के अमेरिका रखना चाहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। इसको तो नहीं कोई अब वापस ऊपर लेके जा सकता डॉलर के टर्म में। आप अपनी करेंसी के टर्म में आप मैनिपुलेट कर लीजिए कि अगर 20% सपोज कि यहाँ से डॉलर और अप्रिशिएट हो गया, तो इसका मतलब कि 20% से ज्यादा आपका अमेरिकन गोल्ड, जो इंटरनेशनल गोल्ड है, वो गिर जाएगा डॉलर के टर्म में। लेकिन अगर उसी समय आपकी करेंसी 20% से ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई, तो आपके लिए गोल्ड का वही भाव रहेगा। तो अगर आज आप 83 रुपीज, 82, $83 के रेट पे आप गोल्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं 60,000 के लमसम में, तो अगर यहाँ से 20% वो गिर गया अमेरिका वाला, और आपकी करेंसी 20% गिर गई, मतलब 95, 96, 100 पहुंच गई, तो आपके लिए गोल्ड का यही रेट रहेगा। गोल्ड आपके लिए ऑलवेज सेफ है कंपेयर टू एवरीथिंग। बट हाँ, एसआईपी ही अच्छा होता है उसके लिए, क्योंकि इसकी भी एक तरफा साइकिल नहीं चलती है। हमने एक तरफा साइकिल देख ली तो इसका मतलब हमने पकड़ के बैठ गए कि गोल्ड तो हमेशा बढ़ता है। तो क्या ये लोग 2, 4, 5 साल का इतिहास होता है, या 100 साल का इतिहास होता है, या 1000 साल का इतिहास होता है? किसी को पता हो कि 1980 का जब पीक लगा था गोल्ड का, तो 20 साल तक गोल्ड खाली गिरा है, खाली गिरा है, खाली गिरा है, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, कभी अप्रिशिएट नहीं हुआ। बीच बीच में जंप आता था, लेकिन फिर गिरता था। 20 साल तक गोल्ड गिरा है। तो ये सब भ्रम में न रहे। गोल्ड कभी ना बढ़ता है न कभी गिरता है। गोल्ड अपनी जगह एक रेफरेंस पॉइंट बन के पूरी दुनिया के लिए रहता है। वो करेंसी आपकी अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होती रहती है। अगर आप अपनी करेंसी में डाउट है, आपको परेशानियां हैं, तो आपको इन्फ्लेशन बीट करने के लिए गोल्ड एक सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। वरना गोल्ड का रियल में अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन कभी हुआ ही नहीं। गोल्ड ही, जैसे आप बोलते हो जीएमटी, एक स्टैंडर्ड टाइम से उससे आप प्लस माइनस कितना चल रहा है भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट गोल्ड रहेगा। तो गोल्ड अगर पूरी दुनिया के लिए, तो गोल्ड कभी महंगा सस्ता नहीं हो सकता। गोल्ड आपका एक करेंसी के टर्म में गिर रहा है। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपकी करेंसी फोकट की हो रही है। गोल्ड वही है, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। इट्स नॉट अबाउट कि गोल्ड में अप्रिशिएशन है। गोल्ड आप देख रहे हो रुपए में, रुपए के टर्म में, डॉलर के टर्म में, यूरो के टर्म में, वो अपनी जगह वही खड़ा है। आप कागज छाप रहे हो, वैल्यू आप डिवेल्युएट कर रहे हो, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओगे, आप अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करते जाओगे। तो ये जो खेल है गोल्ड का, गोल्ड आपको हमेशा इन्वेस्ट
करेक्ट रहना चाहिए। गोल्ड में कभी भी आपको सस्ते में मिल रहा हो, मतलब आपकी करेंसी काफी अप्रिशिएटेड है, और आपको डिप्रिसिएशन का जब जब खतरा लगे तो आप गोल्ड में जाएं, डॉलर में जाएं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि मुझे गोल्ड से ज्यादा अच्छा डॉलर लगता है, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहूँ, मुझे सेफ बेट में बैठना है, तो मेरे लिए वो ज्यादा फेवरेबल है। मैं 2018 से डॉलर में कन्वर्टेड हूँ, ये मैं कई बार डिस्क्लोज कर चुका हूँ। 62-63 का था, फरवरी मार्च की बात है। उस दिन के मेरे ट्वीट हैं कि 72 भी मिलेगा, 75 भी मिलेगा, 84 भी मिलेगा। 6 महीने में 72 मिला था, 75 मिला 2020 में, और 84 का भी शक्ल देख चुके हैं। और जो हालात हैं, ये 100 भी हिट कर सकता है। तो मैं 2018 से अपनी नेट एसेट वैल्यू को मैं डॉलर में कन्वर्ट करके आज तक कैरी कर रहा हूँ। मैं करेंसी के डिप्रिसिएशन को मैंने उसी दिन हेज किया था जिस दिन से मुझे डॉलर में जो भी यूएसडी में या रुपए के में खतरा दिखा था। और ये मैं बहुत बार डिस्क्लोज कर चुका हूँ, और ट्विटर पे मेरे 2018 के मार्च में, फरवरी मार्च के ट्वीट में, मल्टीपल ट्वीट में दिख जाएगा। मेरे किस कोई प्रोफाइल पे जाके, मेरे ट्विटर पे हाईलाइट में जाके देख ले कि यूएसडी पे मेरे मल्टीपल ट्वीट्स हैं। जी सर, आई एम डन सर। थैंक यू वेरी मच विपिन one सर। more. Yeah. What else is मेरा there? यानी You ये explained. आपकी बात बिल्कुल सही है विपिन साहब। मेरा जो बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा ये था सर कि जो एज अ ट्रेडर अपने इंडियन मार्केट को, स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, सर वही चीज को कमोडिटी के साथ अगर देखें एज अ ट्रेडर, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं लग रहा विपिन साहब? मुझे इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, किस तरीके से देखने की बात कर रहे हैं? जैसे सर कमोडिटी में अपने मेन जो इंडिया में ट्रेड हो रही है, जिसमें मेटल्स है और बुलियंस है और क्रूड है, ये तीन को अपने मेजर सेक्टर पकड़ के चलता है। तो सर जो जैसे अपने शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए या 6 महीने के व्यू से अगर जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, से फॉर एग्जांपल अदानी है, अदानी से इन्वेस्ट जिसमें हर रोज 6% 7% प्लस माइनस अभी हो रहा है, यू वोंट फील कमोडिटी उस तरह से ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें आपको एक एज रहती है कि हाँ ये आपको ज्यादा सेफ ट्रेडिंग वहां पे मिलती है, बिकॉज हर रोज का 1-2% से ज्यादा मूव। हाँ फ्यूचर में ऑफकोर्स फ्यूचर में सर, नहीं, तो फ्यूचर फिर नहीं। ओके 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 ना, नेवर। फ्यूचर तो इक्विटी में भी महापाप है अगर आपके पास सिस्टम नहीं है। लेकिन एक कमोडिटीज में करने के लिए आपको बहुत ही हार्डकोर का सिस्टम चाहिए। एंड जो इसका जो मेजर कंसर्न आएगा वो ये आएगा कि मैं 3:30 बजे इक्विटी मार्केट से फ्री हो जाता हूँ, लेकिन रात के 12 बजे तक मुझे एमसीएक्स इन्वॉल्व करके रखता है। तो इट्स द हेल। हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता है, हमें एक फैक्टर ये भी देखना होता है कि साहब अगर हमने रेस्टोरेंट बिजनेस में जाएंगे तो मेरा क्या लाइफ जिम्मेदारी होगा, क्या रोल होगा, मेरी लाइफ क्या होगी। मैं मेडिकल स्टोर खोल लूंगा तो मेरी क्या लाइफ होगी, और मैं रजाई गद्दे की दुकान खोल लूंगा तो मेरी कैसी लाइफ होगी। सर कमोडिटी में ट्रेड करने का मतलब समझ रहे हैं, 24 घंटा मूवमेंट होता है इंटरनेशनल मार्केट में, 1 घंटे के लिए ब्रेक होता है। सुबह न्यूजीलैंड में पहली बार कमोडिटी का पहला ट्रेड ट्रिगर होता है। गोल्ड का भाव मुझे सुबह 4 बजे दिखता था। मैंने बहुत काम किया है इन लोगों के साथ दिन रात। आज से 5 साल पहले, 3-4 साल पहले तक मेरा कमोडिटीज कंटिन्यू था और सालों से था। तो सुबह 4 बजे न्यूजीलैंड से भाव खुलता था, उसके बाद रात भर चलता है। यहाँ 1 घंटे का खाली ब्रेक होता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट बंद होती है पूरी कमोडिटी की। बट आप उसको नहीं कर सकते, ये सिर्फ उन्हीं के लिए बेहतर है। हम काम कराते थे तो दूसरों को, तो हम सर्राफा मार्केट के लोगों को काम कराते थे।
क्योंकि उनके लिए मजबूरी थी। अगर मुझे उनको क्या मैं बहुत ही प्रोफेशनल लोगों के साथ ट्रेडिंग करी थी, लखनऊ में भी था, सराफा मार्केट के कई लोगों से कनेक्ट था। तो जुआरी का एक अलग सेगमेंट है, उनको आप सर्विस नहीं दे सकते। लेकिन जो दूसरा सर्विस था कि अगर मुझे लगता है कि यहाँ से गिरेगा, जैसे चांदी मुझे लग रहा है गिरेगा, तो मुझे अपनी पोजीशन डाइल्यूट करनी, बिजनेस नहीं कर सकता, मैं स्टॉक कम नहीं कर सकता, वो मेरा रेगुलर बिजनेस है। तो हम क्या करते थे कि हम उनको हेजिंग देते थे कि आ जाइए, हमें डर लग रहा है, आप अपना स्टॉक जितना भी है उसका जितना भी परसेंटेज आप लाइट होना चाहते हैं, आप कमोडिटी में शॉर्ट करके लाइट हो जाएंगे। अगर ऊपर चली गई तो क्या नुकसान है? मान लो 70% चांदी मैंने बेच दी कमोडिटी में, अगर ऊपर चली गई तो मेरे पास स्टॉक में तो पड़ी है ना, मेरा अनकम्फर्ट चला गया बस। तो वो चीजों उन्हीं के लिए सही है। एज ए ट्रेडर लिक्विडिटी जनरेट आप मार्केट में कर देंगे, लेकिन इट इज वेरी हेल्प बेस्ट थिंग कि आप इक्विटी मार्केट में रहे। और सबसे बेस्ट होता है, जितना आप कम नॉलेज है उतना बेहतर है कि आप इंडेक्स ईटीएफ में रहें। उसमें आप चाहे वन शॉट पैसा लगाए, चाहे एसआईपी में लगाए, वो सब सही है। लेकिन लोग लेवरेज में जा रहे हैं, मतलब हम लोगों को कहते हैं इंडेक्स के ईटीएफ में भी आ जाओ, स्टॉक में भी मत करो, इंडेक्स के ईटीएफ में आ जाओ, लोवेस्ट रिस्क में चले जाओ। तो देखो ना कितना गिरा 2018 में, 18,600 का हाई था। मान लो कोई आदमी ना चाहा कि भाई मुझे पैसा लगाने, अपना 18,000 पे आके ईटीएफ खरीदा, तो कितना गिर गया? 15,000 गिर गया, उसने और खरीद लिया निफ्टी का ईटीएफ। फिर क्या हुआ? उसको 19,000 मिल रहा है, बढ़ के मिल गया पैसा, जोड़ जाड़ के वो बच गया। स्टॉक में फंस गया, कोई 3,000 पे खरीदा, कोई 2,000 पे खरीदा, लेकिन इन लोगों ने 1,000 रुपए का भाव देख लिया था अदानी का। और आज भी कौन सा गारंटी है कि वो यही टिके रहेंगे? मुझे कभी नहीं लगता कि वो 2700 के ऊपर वो टिक सकते हैं। ये तो मेरे ट्वीट मल्टीपल टाइम कर चुका हूँ कि भैया ये सेफ नहीं है, खतरनाक है, निकलो, छोड़ दो इसको, एकदम छोड़ दो, इनका पूरा ग्रुप ही छोड़ दो, ना एसीसी खरीदो ना अंबुजा खरीदो, कोई जरूरत नहीं, 1,000 कंपनियां हैं पैसा लगाने के लिए। कमोडिटी हेल है, इट इज नॉट गुड फॉर ओनली प्रोफेशनल पीपल, के लिए ही ठीक है वो। तो Vipin bhai, Got your point. last two Thank you. questions. Thank you. One is, I think you already answered this thing about quant trading system. Do you do quant trading system? And what is your opinion? What is your opinion of that? Quant trading. मेरे बारे में आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांट ट्रेडिंग ही करता हूँ। मेरे जितने भी ट्विटर पे मेरी मेहनत के फल हैं, वो एक्चुअल मेरे यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ ट्विटर पे ही रह जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो काम करते हैं वो क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग ही करते हैं। तो क्वांट ट्रेडिंग एक्चुअली बस ये होता है कि आपका एक लॉजिक होता है, जिस मल्टीपल लॉजिक का एक सेट होता है जो कंटिन्यूअस मॉनिटर को जज कर रहा होता है। सपोज कि आपने कोई भी टॉप निफ्टी के 50 स्टॉक है, तो निफ्टी के 50 स्टॉक पहले तो आपको लॉक करना था कि ये निफ्टी के 50 स्टॉक को ट्रैक करना है। उनका आप डेटा लेते हो, फिर वो सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप उसके लिए, चाहे वो आप खुद बनाओ, तो हमारा अपना खुद का बनाया हुआ है। तो आप उसमें कलेक्ट करते हो। अब अपने अलग अलग टाइम है, कोई डेली बेसिस पे उसको इवेलुएट कर रहा है, मैं पर लाइव मार्केट में इवेलुएट करता हूँ कि एवरी नेक्स्ट सेकंड व्हाट्स हैपनिंग इन होल द मार्केट, विच इज बुलिश एंड विच इज बेरिश। तो जो बुलिश लगता है वो मैं बाई करता सिस्टम, एंड जो बेरिश लगता है उसको हम सेल करते हैं। तो क्वांट एक है कि स्टैंडर्ड पैरामीटर, एक ऐसी बैलेंस चीज बनाना जो हमें मिनिमम लॉस हमारा रखे, लूजिंग ट्रेड हमारे होंगे तो मिनिमम लॉस रखे, प्रॉफिट को राइट करे। तो एक ऐसा एग्जिट डिसाइड करना कि हाँ ये गड़बड़ हो रहा है तो अब लॉस बुक करो, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, मतलब एग्जिट करो। ये सब पैरामीटर सही है तो एक पैरामीटर या ढेर सारे पैरामीटर पे मल्टीपल स्ट्रेटजी बिल्ड करके उसको कंटिन्यूअस ट्रेड करना विदाउट एनी इंटरवेंशन के ह्यूमन की, नहीं है मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, या ये कंटिन्यूअस ट्रेड करना इसे क्वांट सिस्टम करता है। जब इसी को पूरी तरह से कंप्यूटर एग्जीक्यूट भी करने लगता है कि वो जो भी बुलिश एंड बेरिश सिग्नल जनरेट हो रहे हैं उस पे ट्रेड लेना और एग्जिट करना
वो भी जब काम कंप्यूटर करने लगता है तो उसको एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं. इट्स जस्ट सेम थिंग कि क्वांट इज अ कैलकुलेशन फॉर जजिंग द स्टॉक की its bullish or bearish and generating signal at that moment. And algo is कि next step कि executing also. Otherwise quant में क्या है कि I got 10 signal, then I can filter कि यार इसमें 10,000 लगा दो, इसमें 15,000 लगा दो. मतलब I am deciding कि हाँ ये signals आए हैं, but judging the whole market by the system. तो quant उसको बोलते हैं. Quant बनाने के लिए अलग अलग तरीके से अनलिमिटेड वे में है, बट इसका बस एक मेन कोर ये है कि यू आर मैथमेटिकली कैलकुलेटिंग प्राइस यूजिंग, you might using fundamental data also, and current live price, volume, and you can also maybe you can add news trigger. न्यूज से भी आप ट्रिगर कर सकते हो. इफ यू हैव डेटा कि यहाँ सब ये न्यूज बुलिश है, then you can convert in a mathematical code की bullish है तो 1 है and bearish है तो 0 है. then you can use in calculation. तो वो कुछ भी आप डेटा इनपुट यूज करके आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो इसके लिए एक बढ़िया तैयारी करनी होती है, एक अच्छी तैयारी होती है. एंड इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो बैक टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है. अगर आप वैसे मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो कोई सॉफ्टवेयर में आपको पिछले 2 महीने के डेटा पे बैक टेस्ट करने को कि आप अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करो. कोई 6 महीने का डेटा देगा, कोई साल का देगा, कोई 2 साल का देगा. बट ये सब बुलशिट है. ये और ज्यादा पॉइजन है. ये बहुत ज्यादा मुश्किल है. जब तक आपको लार्ज सेट ऑफ डेटाबेस नहीं मिलता, आप अपनी स्ट्रेटजी को ट्यून नहीं कर पाएंगे. क्योंकि जो मार्केट का मूवमेंट है वो हद से ज्यादा रैंडम है, हद से ज्यादा अजीब है. हर स्टॉक का जैसे अलग अलग बिहेवियर होता है. यू कांट मेक स्ट्रेटजी फॉर ईच एवरी स्टॉक्स और ईच एवरी मंथ की यार ये महीने के लिए ये स्ट्रेटजी यू कांट मेक. सो यू मेक ए स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी. तो आपको एक बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए होता है, 10 साल 20 साल का. जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा बैलेंस, एक बैलेंस स्ट्रेटजी जो छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट को राइड करे. तो ये काफी ब्रॉड है. वो इंटरनेट पे बैठ के पढ़े लोग तो समझ में आएगा. इससे ज्यादा मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता. Vipin, I think we have almost answered all the questions, and also we have more than 2 hours 20 minutes. Even if we take out the first 10 minutes. 10 मिनट हम अभिषेक को भी देते हैं, क्योंकि अभिषेक को हमने होस्ट की तरह बुलाया, बट हमने उनसे कोई उनका विचार नहीं दिया, उनको इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया. तो प्लीज आप अभिषेक, ये 10 मिनट पूरे आपके हैं. टॉक एनीथिंग with your friends. Yes, here every people are our friends. तो 10 मिनट आप स्टेज यूज करिए जी. 10 मिनट तो आई डोंट थिंक कि हो पाएगा, बट फिर भी सर आप इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. नहीं, इट्स टाइम फॉर यू. अब आप प्लीज इस स्टेज को यूज करिए. Yes, yes, yes. Abhishek, and I'm on Twitter since a long time, and I'm a trader since last 5 years. So मैं पहले कैश में ही काम करता था. अभी पिछले 3 साल से FNO में ट्रेड कर रहा हूँ. So वैसे देखा जाए तो मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट आई एम फॉलोइंग Vipin sir and Sainik sir since last I guess 2-3 months. So it's been nice experience. It's been nice learning with these guys. Sir, Vipin sir, मैं पहले आपको बोलना चाहूँगा, you are doing a tremendous job. लोग मैक्सिमम लोग ट्विटर पे आते हैं and majorly they are for financial exploitation and लोगों को पता नहीं चलता है. And even Sainik sir, I won't forget you as well, क्योंकि आपके जो व्यूज है, आपके टेलीग्राम चैनल में भी हम लोग हैं, काफी लोग हैं हमारे साथ एसोसिएटेड. वी आर देयर एंड वी आर फॉलोइंग यू. तो दीज आर योर व्यूज. वो हमको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर की तरफ और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ ले जाता है. तो आई एम वेरी मच इंडेटेड टू यू गाइज कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सबके लिए.
एंड आई एम हैप्पी कि अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे तो काफी जो साइकोलॉजी है लोगों का वो काफी इम्प्रूव होगा आपके इस तरीके की डायरेक्शन देने से, क्योंकि बहुत लोग भटके हुए, एवरीवन वांट फास्ट मनी। उनको लगता है शेयर मार्केट में आ गए तो अगर इफ दे आर इनटू F&O, they are there to buy naked calls and puts. कोई they don't know how to hedge the positions, how to make the view, कुछ नहीं, किसी ने कहा और वो आ गए और उन्होंने पोजीशन बना ली, एंड दे आर मोर सॉर्ट ऑफ लाइक दे हैव बिलीव ऑन अदर्स कि भैया हाँ मार्केट में पैसा बनता है, बट इट इज नॉट दैट इजी। 5 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, तो आई नो इट इज नॉट दैट इजी, एंड यू राइटली सेड सैनिक सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन F&O, एंड इट इज नॉट अ चाइल्ड्स जॉब कि बस किसी ने बोल दिया कॉल खरीद लिया और पैसा बना लिया। तो यहाँ पे एक मुझे ऐसा लगता है, अभी तो मेरा पर्सपेक्टिव धीरे धीरे काफी चेंज हो रहा है विपिन सर और आपके डायरेक्शन से, कि अ, बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं और एक एक सिंपल व्यू बनाना पड़ता है, बट वो सिंपल व्यू के लिए यू नीड टू डेटा माइन एवरीथिंग, एंड आफ्टर डूइंग दैट एज वेल आपको एक मनी मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आई एम हियर टू आई एक्सेप्ट हियर कि मैं एक हमारे गुरु है उनको बोलूंगा कि विवेक जी जो ट्विटर पे है वाइस ट्रेडर के नाम से, तो आई एम एसोसिएटेड विद देम आल्सो। तो उनके वजह से मुझे काफी कुछ ये टॉपिक सीखने मिला, उनके वजह से मेरा पर्सपेक्टिव काफी बदला है। अदरवाइज जो सभी लोग जिस तरीके से आते हैं कि ये यहाँ आने के बाद कैश में या F&O में पैसा बनता है, इट इज अ मिथ, क्योंकि यहाँ आने के बाद 5% ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो माय सजेशन वुड बी कि इट इज नॉट दैट इजी। अब 5% जहाँ लोग सक्सेसफुल है, तो अगर जो नॉलेज इजीली अवेलेबल है जो सबको पता है वो नहीं होगा, ये सब लोगों ने यहाँ ध्यान रखना चाहिए। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट दैट इजी कि जैसे न्यूज आ गई अब तो अदानी का स्टॉक बढ़ना ही, इट इज नॉट दैट वे। यू नीड टू हैव गुड साइकोलॉजी, हेल्दी साइकोलॉजी, और ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इफ यू आर गेटिंग इनटू अ ट्रेड, so there must be a loss, and that loss you have to define for yourself. No one will come and spoon feed you and tell you that कि ये यहाँ कटना है। And so my uh, humble suggestion for everyone, I mean I'm new to this, there might be a lot of people around here that they may be trading since long time than me, तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहेगा कि यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, इट इज नॉट दैट easy to earn money in stock market, and my exposure basically is in F&O. So a short seller now. Even before meeting Vipin sir, I'm short since 2 years in stock market, but I'm managing my position and managing my capital with hedges, so I'm there. मैं अभी बाहर नहीं निकला हूँ, and my capital is there. I mean विक्टोरिएट नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि I have a bit experience in this market. तो जो डेटा विपिन सर शेयर करते हैं, I'm totally subscribe to it, and सैनिक सर जो आप बोल रहे हो कि it is not bull market, it is bulls market. So they'll test you like anything. अगर आपको यहाँ से पैसा अगर निकाल सके आप लोग कंसिस्टेंटली without greed, so you will be definitely a successful trader in coming future. So this is what I want to say. And मेरे फ्रेंड्स यहाँ काफी लोग हैं जो मैंने पर्सनली जानता हूँ, so my suggestion for them would be कि we will be family together, हम साथ में रहेंगे, and will be associated with Vipin sir and Sainik sir, and maybe in future we can do something good for ourselves.
and society. That's it. Nothing much I would like to add here. Thank you. Thank you. Thanks, Abhishek. Really very good, very kind words. Thank you very much. Really, I appreciate. Maybe which place are you from, Abhishek? I'm from Nagpur, Maharashtra. Oh, very good. Okay, one of these days I'll come there because one of my friends stays there. So maybe Okay, one of okay, these days I'll come. you're welcome. You're welcome. Sir Vipin sir, आप भी नागपुर में welcome हो. अब जब भी आए, it would be my बिल्कुल, pleasure to serve you guys. obviously. तो सैनिक सर काफी टाइम हो चुका है, हम लोग आधा Okay, घंटा just का to conclude. डिस्कशन कर चुके हैं. Yeah, you want me to conclude, Vipin? नहीं, आप ही कंक्लूड करिए. Yeah. Okay, As fine. usual. I'll conclude. Okay, first of all, really thankful to 450 plus people who have come, listened to us patiently for the last 2 hours. And Abhishek, once again, thanks for really coordinating it so well. And apology for that yesterday's goof up. We could not do anything. It's purely technical. And both of us tried our best to give our point of view. The reason why we came, we hardly do any spaces. We do spaces maybe once in 2 months. And even though Vipin was not well, I told him, I think probably we should do one because, we are at a time where marketmen are extraordinarily bullish. They are not able to see the coming storm. And so therefore we should, warn people about the storm. You see, now it is always popular to be having a bullish view because you will say, why are you bearish? It's almost an anti-national thing. And nowadays, you have to be careful with what you say because they will label you as an anti-national, they label you as a fool, they label you various things. And Vipin gets trolled much more than I do. Probably because he's much more forceful in his opinions. And I have followed Vipin for last many years. And when I tell others about Vipin's opinions, for instance, I part of the Madras Stock Exchange group, most people don't believe his thinking. They think it is all purely luck. And when I showed proof the other day, they did not know what to say. Nothing comes by luck, pure luck here. You need to do a lot of hard work, as Abhishek mentioned. And for a particular session of space, it takes me minimum 10 hours to draw in the data, get in the data, organize my thoughts. I write down everything and then, come and speak here. Because we need to be very careful in what we speak. We are not like others who will say something and will not accountable and will not have data at their fingertips. They wouldn't have done research. And then, we have an obligation to all of you who come here, listen to us, because you have faith in us that we probably will give you better kind of perspective than others. Of course, we are just human beings, as Vipin has said. They're not gods. Only God and fraud can decide which is the high and which is the low. What we can give is a perspective that these are the factors on which we base our judgment. You have to accept it, not accept it. I saw a couple of nasty comments coming saying that Vipin doesn't know anything. He's comparing Mukesh Ambani with Anil Ambani, and therefore he knows nothing. See, the point is not comparing Mukesh or Anil. It is a question of pricing. You get things at the wrong price. I'll just end with an example. You see, DLF. DLF is a market leader. Today, it was a market leader 15 years ago when it got listed in 2007. It was the hottest stock at that point of time because DLF could do no wrong. It was, in a market leader as far as India is concerned. And it went up to about 1,250 rupees in early 2008. I think it crossed even 1,250. And subsequent to that, the prices have come down and down. And today it's still struggling at 500. And believe me, these are raw prices. These are not adjusted for some bonus or rights or something like that. Except for dividends, you look at DLF. DLF is a market leader today. DLF is a market leader then. And yet you look at where the prices are. Similarly, somebody mentioned about NVIDIA. NVIDIA has gone up like anything. And people think that, you can buy NVIDIA at any price because they are in the hottest sector.
23 years ago, Cisco was in the hotter sector. Cisco also went up like that. Today, Cisco is a fraction of the price which Cisco was in 2000. And Cisco is a market leader, was a market leader then, is a market leader today. So it is value and price. There is a huge difference. So what price you pay and for what value you get, that is what differentiates between a good trader or good investor and a not so good investor. So we are also learning. For instance, when I talk of 32 years experience, I have learned more in the last 2 years than what I learned in the first 30 years. That is how markets are. Markets change. Therefore, one has to study all time. As Vipin says, he gets away, he's awake all the time. I study the markets, outside the markets, at least 4 or 5 hours. I listen to all points of view. You need not have one point of view saying, I'm bullish, so I only want to have bullish friends or people who talk bullish. Or I will disregard people who are bearish, or I'll troll them who are bearish. It doesn't work like that. If you want to be a complete investor, if you want to survive, see, somehow we have survived. With God's grace, hard work, and a little bit of luck, we have survived 30 plus years. Vipin has survived 25 plus years. The reason he's only 25 plus years experience is because he's 20 years younger to me. So therefore, what I would like to say at the end is, markets will always give you money if you are careful, if you respect markets. Please respect markets. Markets have their ups and downs. So it's like the bear market is something like your monsoons, your heavy rains. And bull markets are like your summer. So you cannot have all-time summer. I stayed 30 years in Chennai. I know if you have summer all through the year, how bad it is, the weather. So you need to have rains. Only in rains, if you have got good rains, then you can have these, fresh bloom of the seeds will bloom and they become trees, and then they'll give you fruits. So never fear a bear market. Accept it, embrace it, because in the bear market, you will get fantastic bargains on which you can make money in the bull market. So bear markets are not bad. Bear markets are actually good it's like your cleansing of your portfolios. So our both of our what shall I say, opinions are very strongly grounded in the theory that fundamentals are deteriorating, cash flows are reducing for the corporates, the liquidity is being drained out by the central bankers. That is visible. These are not speculation or what we are saying. So therefore, to talk of 20,500, 21,000, of course, anything can happen in the markets. But what is the probability of that happening? What is the probability of an 18,000 versus a 21,000? You will have to judge it for ourselves. We have judged it. We have taken positions on that. We have explained what we have done. I hope you can use your knowledge and experience and the understanding of what we have tried to explain here and take a considered decision. As once again, we say this is only educational. I have put some stocks on the question answer session, but that is purely what I have done. So I'm not recommending anything, but that is our strategy. So just take it like that. Thank you once again, all of you, including Abhishek and Vipin. Good night. Okay, everyone. Good night, sir. Good night. Yes. So waiting for the next phase. Just 1 minute, Vipin. Just sorry, before it closes, I completely forgot. Tomorrow we are having a clubhouse session on the same topic. Clubhouse session has got a completely different kind of audience. So we thought we'll address them at 8:30. Sunday, 8:30, Market Mirror is my room. And we used to do it regularly. And now I've stopped for some time. But I'm inviting Vipin to be my guest tomorrow, 8:30, Clubhouse. Same topic, probably newer people will be there, questions we'll answer, whatever new questions you've got. And you can always send it in by DM. I'll try my best to answer to my best of my abilities. Thank you. Okay. Sir, it would be nice if you can share the link for Clubhouse session as well. Yeah, that I will do tomorrow because I have not yet put that there. As soon as I put it, I will come on my TL. Tomorrow morning. Thanks, sir. Yeah. Thank you. Okay, good night. Okay, thanks everyone. Good night. Good night.